علی 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 مولا جی علی علی. جی علی صاحب. جانم فدا ہے آج کا ٹاپک کیا ہے سر جی؟ بو ارے ساجد تمہاری آواز گئی یار, ساجد بھیا کیا ہوا؟ عذاب آیا ہے. سالا نیٹ عذاب نازل ہو گیا ہے. اچھا علی بھائی آپ مومن ہیں؟ الحمدللہ مومن ہوں. ماشاء اللہ. کوئی سورہ ادھر سنا سکتے ہیں؟ کون سی سورہ بتائیں آپ؟ جو بھی ابھی میں جو بولوں گا وہ تو آپ ایسا نہیں ہے نا کہ آپ کو پورا حفظ ہے. میں بولوں گا سورہ آل عمران سنا دو تو آپ سنانا شروع کر دو. نہیں حفظ نہیں ہے. ہاں تو جو آپ کو آتی ہے وہ سنا دو نا جناب حضرت. اچھا جی, اس سے آپ کیا ثابت کریں گے یہ بتائیں پہلے آپ. ہمیں ثواب لینا ہے آپ کی قرات سن کر. تو آپ خود ثواب لیں نا, خود پڑھ کر, اس میں زیادہ نہیں, ثواب ملے گا آپ کو. دوسرے کے منہ سے سننے زیادہ اچھا لگتا ہے نا علی بھائی. ہم آپ کو بھی بھائی ثواب دلانا خود چاہتے ہیں اور خود بھی لینا چاہتے ہیں, تو کچھ سنا دیجئے, دیکھیے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے میرے تو خیر ثواب پتہ نہیں زیادہ ہیں کم ہے جو بھی ہے, لیکن اگر آپ خود پڑھیں تو کچھ زیادہ ہی ثواب ہوگا, کیونکہ جب خود دبا کھاؤ گے نا تو سورہ اثر اخلاص آتا ہے آپ خود کو کو. علی صاحب؟ ارے آپ میری بات سن رہے, مجھے نہیں آتا, میں نے آپ سے کہا نا نہیں آتا. آپ کو کوئی سورہ ٹھیک نہیں ہے, آتی ہے؟ سورہ آتی ہے الحمدللہ رب العالمین. وہی پڑھ دیجئے. اچھا جی, چلے آپ جی پڑھ دیجیے, آپ کے پیچھے پیچھے میں پڑھ دیتا ہوں اور بتائیں. نہیں, آپ پڑھیے, میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں, چلیے. اچھا جی, جی شروع کریں. الحم کا ہی شروع کریے. اچھا جی سر. جی اچھا یہ بتائیں ٹاپک ہے کیا؟ ارے اس پہ آئیں گے, پہلے آپ یہ تو پڑھیے, الحم کا سورہ شروع تو کریے, پھر میں آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ہاں جی آمین. جی, ماشاء اللہ. اتنا بھاؤ کیوں کھاتے ہو یار آپ لوگ؟ نہیں ہم بھاؤ نہیں کھاتے بھائی. یار مجھے کوئی بھاؤ پڑھنے والی بولتا ہے میں تو پٹک سے پڑھ لیتا ہوں. نہیں تو پڑھ لیتے ہیں, اچھی بات ہے نا. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا, آپ کہہ رہے کہ آپ سنائیں اب میں ثواب مل جائے گا, تو میں نے یہ کہا کہ مطلب اگر آپ پڑھیں گے تو مجھ سے زیادہ مطلب میرے سے زیادہ آپ کو ثواب مل جائے گا. اگر آپ کا پرسنٹیج 10 ملے گا میرے سننے سے, اور آپ خود پڑھیں گے تو آپ کا 100 ہو جائے گا. چلو ماشاء اللہ, آپ نے کما لیا نا ثواب. ابھی یہ بتاؤ علی صاحب, ہمارے علامہ صاحب جو ہے یہ باقاعدہ انہوں نے مدرسے میں تعلیم لی, عالم بنے, اور ان کو بہت ساری چیزیں غلط لگی اور انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, ہوں. اب بہت ساری چیزیں تھی تو میں ایک پیش کرتا ہوں اور آپ بتائیے گا کہ اس کے باوجود آپ کیوں ہیں اسلام میں. ایک اعتراض علامہ صاحب کا یہ تھا کہ قرآن میں اللہ جو حروف مقطعات کا ذکر کیا ہے, جیسے الف لام میم ہو گیا, ہوں. حامیم, ہوں. یاسین, توسین, ہوں. قاف ہا یا عین صاد, ہوں. اس طریقے سے, ہوں. تو ہوں. یہ بنا مطلب والی سٹیٹمنٹ اللہ نے کیوں مارا ہے؟ دیکھو بغیر مطلب والی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ کوڈ برڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ کوڈ برڈ انہیں معلوم ہے جس نے اللہ رب العزت نے جو قرآن اتارا ہے. تو کس کو کچھ معلوم چیزیں تھا؟ اللہ کو معلوم ہے. ارے میرے بھائی, اللہ کس کے لیے نازل کیا؟ مومن کے لیے. مومن کے لیے نازل کیا. ہدایت کی بک ہے یہ, ہاں ہدایت کی بک ہے. پکا نا؟ پکا. ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ساری انسانیت کے لیے. تو ہدایت کی جو کتاب ہے, گائیڈنس کی کتاب ہے, اس میں ایسے الفاظ ہونا چاہیے جو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے. ایسے الفاظ تو نہیں ہونے چاہیے دنیا کے بہت پرسپیکٹو, اگر شکریہ, دنیا کی نظر سے دینا چاہیں گے نہیں ہونے چاہیے. بہت لیکن شکریہ. دیکھیے ابھی کچھ علی بھائی آپ کا دماغ چلا ابھی.
اچھا آپ کا دماغ ویسے چلا, اسی بات پہ آپ غور کرو. یہ تو ایک شروعات ہے, میں ابھی آپ کو اور بھی لے کے جاؤں گا. لیکن دیکھو کہ ایک کتاب جو یہ دعویٰ کرے ہدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت, ہوں ایک جی کتاب جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے, تو ہدایت والی کتاب میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے جس کا کوئی معنی ہی نہیں, مطلب ہی نہیں, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے. یہ بالکل کیا کہتے ہیں اس کو, بے تکی بات ہے. اور یہ ہم ایک خدا جو خالق کائنات ہے, سارے جہان کو بنانے والا ہے, انسانوں کو بنانے والا ہے, کم سے کم اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اس طریقے کا کام کرے. تو پھر ہم اس کو خدا کا کلام کیوں مانیں؟ اس بات پہ غور کریے علی صاحب. دیکھیں میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ان باتوں سے میرے اوپر تو خیر کوئی اثرات نہیں پڑنے, اور اچھا, ایمان اور مطلب غلط مضبوط جو ہے, ہوگا. نہیں نہیں دیکھیں غلط ہی یہی نہیں ہے. علی آپ بھائی, مجھے آپ مجھے ثابت کریں کہاں سے غلط ہے. ابھی یہ ثابت کیا آپ نے, خود مانا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے تو اچھا اقرار کر ایک دیا ہے, سیکنڈ ایسا ہونا ایک چاہیے. سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ, آپ نے اپنی بات مکمل کر دی. اچھا یہ بتائیں, آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں میں ایک سوال پوچھوں گا نا آپ سے, وہ فرق نہیں پڑنا نہ ٹھیک ہے, پڑنا وہ تو آپ کے ٹھیک اوپر ہے. ہے. آپ 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 کا مان لیں ہو گئی. ایگزامپل, ایک منٹ میں آپ کو اس طریقے ہوں، سے جواب دیتا ہوں. آپ یہ بتائیے آپ کہ پہلے میری آپ, بات تو سن لیں. ہاں سوال میں کا آپ کا بتا رہا جواب, ہوں, آپ سوال کا جواب چاہتے ہیں نا, ہاں تو میں سوال کا جواب دے رہا ہوں نا, تو پھر آپ مانیں نا کہ ہاں میری شادی ہو چکی ہے. چلو مان لو کہ میری شادی ہو چکی ہے, تو جب آپ کا بیٹا ہے بیٹی ہے جو بھی ہے, چلو میرے ٹھیک ہے, مومن ہوں, میں مومن تھا تو میرے 10 لڑکے 10 لڑکیاں ہیں. اب یہ نا آپ وہ نا بہت عجیب بات کر رہے ہیں یہ آپ, مطلب کیوں؟ ایک میرے کو مطلب ارے کیا بھائی, کہوں میں کیا آپ 20 سے, بچے نہیں مطلب ہوتے کیا مومنوں کے؟ نہیں ہوتے الحمدللہ, 50 بھی تو ہوتے پھر ہیں. کیوں آپ کو اتنا ٹینشن کیوں تو آ رہا آپ ہے؟ مان, تو آپ اتنی کاؤنٹنگ بتا کر رہے ہیں, آپ ایک ہی بول دیتے. ارے تو 10 ہونے بھائی, میرے رسول 10 اللہ نہیں جو یار, ہے, 50 سنو بولتے ہیں نا, آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں سنو میں سنو سنو, آپ دیکھیں ارے آپ سن, ٹاپک سے بھٹکا رہے ہیں, ارے مجھے میری آپ نے بات سنیں. سوال کیا کہ آپ نے زیادہ کیوں بولا, تو اس کی وجہ بتا رہا ہوں, تو سن تو لو. میرے جی رسول بولیے. اللہ جو ہے وہ اس بات پہ فخر کریں گے کہ جو زیادہ اولاد پیدا کرے گا, تاکہ ان کی امت جو ہے وہ زیادہ ہوگی نمبرز میں. تو اس جی وجہ جی سے میں یہ بولنا پسند کیا کہ میرے 20 بچے ہیں, 10 لڑکے 10 لڑکی. جی چلو ابھی آپ کا سوال. ٹھیک. اب میرا سوال یہ ہے کہ مطلب آپ ساری چیزیں بتاتے ہو, انہیں اپنی ہر چیز جو زندگی کے ساتھ گزری ہے اور جو زندگی کے ساتھ نہیں گزری, جو, ساری چیزیں بتاتے ہیں. ہاں میں بتاتا ہوں, جو چیزیں اچھا گائیڈ کرنے والی ہے میرے بچوں جی کو, جی 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 ہاں جی جو گائیڈ, جو نہ 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 چیزیں, نہ 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 نہ, پہلے بات سنیں نہ آپ, نہ 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 نہ, میری بات سنیں. جو بچوں کو گائیڈ کر سکیں, اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سیدھی سی ہاں بات. بچے کو گائیڈ نہیں کرتے. گائیڈ کرتے ہیں, لیکن ہر بات تھوڑی گائیڈ کر دیتے بھائی, کچھ چیزیں جتنی ایسی ہیں. چیزیں, سنو میری بات, ہوں جتنی چیزیں میرے بچوں کو گائیڈ کرنے کی ہوگی, میں ان کو ایسی لینگویج میں بتاؤں گا, ایسی مثالیں دوں گا کہ وہ میرے بچوں کو سمجھ آئے. اس میں جیسے میرے بچے جو ہے وہ ہندی سمجھتے ہیں کیونکہ ہم جی. ہندوستان میں رہتے ہیں, یا اردو سمجھتے ہیں مثال کے طور پہ. ہوں تو میں ان کو جیسے میں سمجھاؤں گا کہ 10 بچوں, عبد الکریم, سلیم, ناوید, جاوید, حبیب, ہوں سلیمان, ہوں ابو بکر, جی. عمر, عثمان, ہوں ایسا 20 بچوں کے بلا کے, پھر اس کے بعد سریا, تریا, عائشہ, ہوں زینب, ام ہوں کلثوم, ایسا پورے 20 ہوں بچوں کو بلا کر میں ان کو ایسے سمجھاؤں گا کہ میرے بچوں جھوٹ نہیں بولنا ہے, میرے بچوں دھوکہ نہیں دینا ہے, ہوں میرے بچوں کسی کے ساتھ جو ہے ناانصافی نہیں کرنا ہے. اب یہ بتاتے بتاتے میں ان کو پھر یہ بتاؤں, قبلوب قبلوب, میرے بچوں اپنی صحت کا دھیان دینا ہے, ہوں میرے بچوں پڑھائی لکھائی کرنا ہے, قبلوب قبلوب.
चकलक पकलक। मेरे बच्चों, झूठ नहीं बोलना है, मेरे बच्चों पड़ोसियों के साथ अच्छे रहना है। मैंचिक कुचुक पैक। अगर मैं जी। ऐसे अपने बच्चों को हिदायत दूं और उसमें ये बीच में चुकलुक पुकलुक क्या ब्लैक कुबलुक मैंचुकुंचो कैले पोलो ऐसा कर दो आपके तो भाई बच्चे ये सोचो, मेरे बच्चे भी मेरे को चिल्लाएंगे या नहीं पागल चिल्लाएंगे? पागल पागल कहेगा, चिल्लाएंगे तो नहीं, पहला ही पागल कहेगा। अली भाई जैसा जरा कि कुरान में बताया गया, जैसे कि कुरान में बताया गया, या अय्युहल्लज़ीना नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून, तुम तो पागल है। अगर साहिल भाई आपके ऐसा हिदायत दे तो आपका बच्चे भी आपको पागल करेगा। अरे अल्लाह साहब खुश। अली साहब बताने का मकसद ये है कि देखिए, आप 1 सेकेंड पॉइंट वही आ रहा है, आप मान भी चुके थे, लेकिन चूंकि आप मोमिन हैं और बचपन से इतनी कंडीशनिंग आपकी की गई है कि एक गलत चीज आप गलत होते हुए भी उसका दिफा कर रहे हैं। भैया जब देखो आप गलत है ही किसी नहीं यार भाई, एक्सक्यूज मी, गलत नहीं है वो, कहीं से अच्छा गलत जो नहीं है। अच्छा देखिए जो कुछ आपने चीजें मिसाल होती मेरे से हैं, देखें सुने, कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, समझ रहे हैं? जैसे मैं हाँ मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो उसके अंदर ना कुछ कोडिंग आती है, सिस्टम, हाँ समझ रहे हो? वो तो वो कोडिंग समझ में आना समझनी चाहिए या नहीं पड़ती आना है। चाहिए आपको हाँ, कोडिंग? नहीं नहीं, मेरी बात सुने, कुछ हाँ कोडिंग ऐसी होती है ना जो हमसे ना 30-30 50-50 साल पुराने बंदे होते हैं, उन्हें भी नहीं पता होता उन कोडिंग का। ये अल्लाह लेकिन रब्बुल होना इज्जत की चाहिए तरफ क्या से नहीं होना कोडिंग चाहिए? है। अब रही बच्चे के हिसाब से न, वो जो भी कोडिंग आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी कोडिंग पढ़ाई जाती है वो आपको मालूम होना चाहिए या नहीं मालूम होना चाहिए? और जिसने वो कोडिंग लिखा है उसका फर्ज बनता है क्या नहीं बनता है कि दूसरे को बताए कि इस कोडिंग का ये मतलब है? देखो उसका तो वैसे, देखो मैं बताऊं, उसका तो फर्ज बनता है, डेफिनेटली इट इज ट्रू, एग्जैक्टली तो ये क्या सच तुम्हारे है। अल्लाह ठीक का है फर्ज? ठीक है थैंक यू। अब रुको, ठीक अब है ठीक रुको है, मेरी अली भाई, बात अब सुनो, रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक्सक्यूज मी। बोलिए। वो दुनिया में बताने के लिए भाई ये इसलिए कोडिंग बताइए ताकि कोई भी मशीनरी है ना वो चल ले प्रॉपर तरीके से, बंद ना हो, अच्छा ये अलीफ इसलिए लाम मीम से कोडिंग को। क्या चलेगा? अब मैं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात मुकम्मल होने है, आप बीच में न टोकें। ठीक है। अच्छा, आपके कॉन्सेप्ट से ये हमारे, मैं एक बात बोलता हूँ, हमारे मरने के बाद हमें कहाँ जाना है ये बताएं आप, चलें पहले बात। आपके मरने के बाद आपको कहाँ जाना है? किधर नहीं जाना है? खत्म आपका मामला। नहीं, फिर मतलब दोबारा फिर नहीं आना, मतलब दुनिया में नहीं, मतलब क्यों आना आखिरत है? है या नहीं, आखिरत का कॉन्सेप्ट है नहीं है? किसने बोला आपको आखिरत का कॉन्सेप्ट है? क्या साबित कर सकते हैं आप क्यों? आखिरत का कॉन्सेप्ट है? क्यों साबित कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बताइए जरा कुरान नहीं पढ़ा? कैसे अजय मरने के ये बाद। आपके साथ, ये आपके एक मिनट एक मिनट साथ एक्स अली मुस्लिम भाई, बैठे हैं, अली भाई, इसमें अली भाई, अल्लाह ताला अली भाई, इनसे पूछें, ये बताएंगे ना आपको। नहीं नहीं अली भाई, क्या जी आप मरने के बाद की जिंदगी क्या आप साबित कर सकते हैं? हाँ, साबित कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज करिए यार, पहला इंसान मिला है मुझे जो मरने के बाद, पहला जिंदा इंसान मिला है जो मरने के बाद की जिंदगी साबित करेगा। प्लीज गो अहेड अली साहब आप। अच्छा मुझे ये बताया अली साहब, चूंकि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। कितना पढ़े लिखे हैं आप? भाई 10+2 के बाद पॉलिटेक्निक की है। क्या किया है? पॉलिटेक्निक? पॉली जी, मैकेनिकल। मैकेनिकल में इन्होंने पॉलिटेक्निक की है, माशाल्लाह। चलिए अभी बताइए कि मरने के बाद की जिंदगी आप कैसे साबित करेंगे? मरने के बाद की जो जिंदगी का जो कॉन्सेप्ट है, कोई हम्म भी चीज जब दुनिया से जाती है हम्म तो वो क्या? मैं एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, रुके हैं आप। अच्छा बताओ, सोचो सोचो, अच्छे से सोचो। पॉलिटेक्निक किया है आपने तो थोड़ा दिमाग लगा के लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना। अच्छा साहिल भाई, अपन कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं, इसमें लैंग्वेज होती है, उसमें कोडिंग होती है, कोई एक ऐसी कोडिंग हो जिसका कोई यूज नहीं हो, उसको हटा दे तो कोई फर्क पड़ता है बेमतलब है, कोई प्रोग्राम पे? मतलब नहीं। सही बात, सही अब बात है। वो अलिफ तो मैंने लाम बच्चों मीम का कुरान, एग्जाम्पल देके ही साबित कर दिया उनको। अलिफ लाम मीम कुरान में नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता, देखो कौन सी अल्लाह कोडिंग बल्कि है ये? ताला, बेमतलब की चीज है।
बेमतलब की चीज आपकी नजर में है ना भाई, आपको अपनी स्ट्रीम चलानी है, अच्छा, आपके लिए तो आपकी नजर बेमतलब में है वो ना। मतलब की चीज है? एक मिनट, आपकी मेरे नजर नजर में में वो मतलब क्या मतलब है मेरे उसका? उसका मतलब तो हमारे नबी को भी नहीं पता था, अरे वो तो तो अल्लाह फिर को ही पता है। मतलब अरे भाई, आपको पॉलिटेक्निक का वास्ता देता हूँ भाई, कुछ तो सोच समझ के बोलो। अभी आपने कहा कि मेरे लिए मतलब की चीज है, मैंने आपसे पूछा क्या मतलब है आपके लिए वो, आप बोल रहे हो मेरे नबी को भी नहीं मालूम है, तो फिर मतलब की चीज कहाँ से हुई वो? भाई कुछ चीजें ना राजदारी रहती हैं, मतलब कुछ आदमी, अल्लाह ताला की कुछ उसमें हिकमत होगी जो उसे क्या बताना हिकमत? मुनासिब नहीं समझा। बेमाना चीज, मरने के बेमतलब मरने के चीज बाद देने की क्या हिकमत है अली साहब? जब आखिरत में जब जाएगी पूरी दुनिया का जब हिसाब किताब हो, जब अल्लाह ताला माँ बताया अलिफ तो लाम आप मीम ये के क्या कहना चाह रहे मायने। हैं कि इस दुनिया में गाइड करने की किताब में अल्लाह ने ऐसी चीज रखी है जिसका दुनिया में कोई मतलब नहीं है, वो आखिरत में अल्लाह बताएगा कि अलिफ लाम मीम मैंने क्यों कहा था। दुनिया में जी जी, बेमतलब है वो, दुनिया के लिए दुनिया में बेमतलब है वो। हाँ हाँ, आप जैसे लोगों के लिए बेमतलब है, लेकिन हमारे लिए मतलब है। कहाँ, आपके लिए भी तो दुनिया में उसका कोई मतलब नहीं है। भाई हमारे लिए तो कोई बेहतर ही मतलब होगा, हमारा तो गुमान और सोच यही कहती है कुछ बेहतर ही होगा, कुछ बड़ा मतलब धमाका एक होगा। अंधविश्वास में आप इसको अपने लिए मतलब के साथ मान रहे हैं, आपके पास उसकी कोई दलील नहीं है उसको साबित करने के लिए कि ये मतलब की चीज है ये, या इससे कुछ फायदा है। देखिए मेरे पास तो दलील तो नहीं है खैर, लेकिन जो भी है मैं एग्जैक्टली, आप थैंक यू सो मच। मतलब एक अंधविश्वास में आप सिर्फ मान रहे हो उसको। अंधविश्वास थोड़ी है यार ये। अरे अंधविश्वास इसको ही कहते हैं ना, जो आप साबित ना कर पाए, जिसका कोई आपके पास जवाब ना हो, जिसको प्रूव किसी ने नहीं किया है अभी तक, उसको ही अंधविश्वास कहते हैं। कि मान लो जैसे मेरे सामने कोई कहे कि सुपरमैन उड़ता है, तो हम्म, यानी कोई कहे कि मैं उड़ता उड़ता हूँ। है, उड़ता हाँ, है, मैं उड़ता सुपरमैन हूँ, उड़ता है, सुपरमैन तो उड़ता है। आपने मूवी नहीं देखी मार्वल तो वालों की? आप मानते हैं कि सुपरमैन उड़ सकता है? भाई मार्वल में तो उड़ सकता है, मार्वल वालों की पिक्चरों मार्वल में में तो। उड़ सकता है ना, हकीकत में उड़ सकता है? हकीकत में तो नहीं उड़ सकता। नहीं उड़ हाँ सकता, वो लेकिन बात कोई दूसरी आपसे है, ये कहे, क्रैन वगैरह से नहीं सुनो ना, कोई आपसे ये कहे कि भाई मैं तो उसको उड़ता हुआ नहीं देखा, और मुझे मालूम भी है नहीं उड़ सकता, लेकिन मैं मान रहा हूं क्योंकि मेरा ईमान है कि उड़ता है, क्योंकि वो बोल रहा है कि उड़ता है, तो इसको अंधविश्वास नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? इसे अंधविश्वास नहीं कहते उस्ताद, क्या अंधविश्वास ये कहते हैं कहते इसको? हैं, इसे कहते हैं मोहब्बत मालिक से। भाई इसको मतलब चुतियापा कहते हैं और कुछ नहीं कहते। मोहब्बत में मोहब्बत में आप अंधविश्वास कर रहे हो ना? क्यों मोहब्बत में तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंधविश्वास नहीं करते कि मेरे बाबू ने खाना नहीं, खाया कि मेरी नहीं खाया, और मेरी भले ही गर्लफ्रेंड तुम ये भूखे हो और कह रहे हो कि हाँ भाई, खाना खाया। भाई मोहब्बत में तो तुम यार, हम लोग सब झूठ नहीं बोल नहीं देते हैं, नहीं, अंधविश्वास ही है ना मेरे मोहब्बत भाई, भी तो। अच्छा तो मतलब आप ये झूठी चीज को आप मान रहे हो, ये मोहब्बत है आपकी? मैं झूठी चीज को मान ही नहीं रहा, मुझे मेरा दिल कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, ठीक है, उसने गवाही दी एग्जैक्टली है। भाई, इसी को ठीक है, अंधविश्वास कहते हैं। इसे अंधविश्वास नहीं कहते, इसे मोहब्बत कहते हैं, लगाव कहते हैं। मोहब्बत की नई डेफिनेशन ये है कि आप अंधविश्वास वाली चीजों को मानो, इसका दूसरा नाम मोहब्बत है, क्योंकि अंधविश्वास बोलने से आपकी बेइज्जती हो जाएगी या आप कमतर समझेंगे लोग आपको, इस वजह से आपने उसको मोहब्बत बोलना है। ठीक है, चलो ये बताओ कि अभी आखिरत की जिंदगी, मरने के बाद की जिंदगी आप कैसे साबित कर सकते हो? मरने की बाद जिंदगी साबित हम कुरान से कर सकते हैं। और जो कुरान नहीं मानता उसको कैसे साबित करोगे? हम कुरान लोग तो क्या नहीं कुरान मानता? नहीं मानते, हम तो हाँ, लॉजिक मानते हैं, कुरान तो नहीं मानते हम लोग। अली साहब, जो कुरान नहीं मानता उसको कैसे साबित करोगे? जो कुरान नहीं मानता तो वो तो फिर बेकार ही है, उसके सामने तो फिर दीवार में सर मार ले, वो बेहतर है। नहीं नहीं, उसको साबित कैसे, जैसे देखो मिसाल के तौर पे आ, एक बंदा है जो साइंटिस्ट को नहीं मानता, कौन नहीं लेकिन मानता? साइंटिस्ट, हाँ, कौन नहीं मानता बंदे? मैं कौन सा एक बंदा? एग्जांपल दे रहा हूं, सुन लो अच्छा पहले, एग्जाम्पल, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ताकि आपके समझ में आ जाए। एक इंसान है जो साइंटिस्ट को नहीं मानता,
लेकिन साइंटिस्ट की थियरी कुछ है, साइंटिस्ट ने कुछ एक चीज इन्वेंट की है, उसकी एक इन्वेंशन है, भले से वो साइंटिस्ट को ना मानता हो और वो ये कहे कि भाई मैं इसको नहीं मानता हूं, मुझे इसकी जो इन्वेंशन है वो साबित करके दिखाओ, तो क्या साइंटिस्ट उसको अपनी इन्वेंशन साबित करके दिखा सकता है? उसकी वर्किंग, जैसे प्लेन उड़ रही है, तो क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि किस तरह उड़ रही है? हाँ, मैकेनिकल थ्योरी से तो बता सकता है आदमी इसका रीजन क्या, क्यों उड़ रही है। एग्जैक्टली, मतलब कि कोई उसको माने या ना माने, आप जो कॉन्सेप्ट दे रहे हो, क्या आप उसको साबित कर सकते हो? आप ये नहीं कह सकते हो कि साइंटिस्ट को मानेगा तो साबित हो पाएगा, साइंटिस्ट को नहीं मानेगा तो ये साबित नहीं हो पाएगा। समझे मेरी बात? तो इसी तरीके से हम कुरान को नहीं मानते, क्या आप बिना इसके सहारा लिए कुरान का, क्या आप मरने की बात की जिंदगी को साबित कर सकते हो? देखिए, कुरान के हवाले से ही साबित है मरने के बाद की जिंदगी, मतलब ऐसा बिना उसके आप नहीं कर सकते। साइंस की तरफ से तो कोई ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। हाँ, बस वो ये कहते हैं कि दुनिया जो बनी है एक दिमाग से बनी है, बस। माशाल्लाह। चलो, भाई के पास और एक चीज का इन्होंने मान लिया कि इस अंधविश्वास के अलावा आप आखिरत की जिंदगी को, जन्नत जहन्नम, ये चीजों को आप साबित नहीं कर सकते। यहाँ भी हमारे अच्छा, भाई एक फेल हो बार चुके हैं। देखे मैं तो फेल था ही, ठीक है, पास होने की नहीं, कभी आप उम्मीद ही फेल नहीं नहीं रखी। है अली भाई, मेरी आप बात हमारे सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो ना अली भाई, एक मिनट। मेरी बात सुनो। मैं एक बात क्लियर कर दूं, मेरे को दुख हुआ आपने जो ये कहा कि मैं फेल हूं। आप फेल नहीं है, आपका इस्लाम, आपका अल्लाह, आपका कुरान फेल है। आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, मेरा अल्लाह बुलंद है और मेरा कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है। किधर है आपका अल्लाह? ठीक, मेरा अल्लाह इस वक्त हर जगह है। हर जगह पे है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आर यू श्योर? मैं श्योर। आपके टॉयलेट में भी है? जी, आपके टॉयलेट में भी है? टॉयलेट पे भी है, आईना में कुंतम फसम वजुल्ला, आप लोग जहाँ पे हो वहाँ पे अल्लाह है। नहीं, एक मिनट, अल्लामा साहब इनसे पूछ लेते जी हैं। अली हजूर। भाई, आपके टॉयलेट में भी है? देखें, अब टॉयलेट से तो मुराद ये है कि मतलब आप तो फिर ये सोचे, फिर तो अल्लाह टॉयलेट है, तो फिर अल्लाह नहीं, जहन्नुम में वो भी है मैं ना, नहीं पूछ रहा नाउजुबिल्लाह। अल्लाह आप ये टॉयलेट बोल है, देंगे फिर मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि नाउजुबिल्लाह। टॉयलेट में भी है अल्लाह? यार, अल्लाह हर जगह है, ये रोशनी हर जगह है यार। बल्ब लगा दो ना, तो क्या आपके टॉयलेट में रोशनी नहीं जाती? अच्छा, जहां पे रोशनी, अगर अल्लाह रोशनी है तो जहां पे रोशनी नहीं है वहां पे आपका अल्लाह नहीं है? ऐसे कैसे? मतलब रोशनी तो अभी जहाँ सूरज है वहाँ रोशनी है, जहाँ सूरज नहीं है वहाँ चांद है, वहां पर भी रोशनी है। नूर तो हर चांद की जगह खुद है। की रोशनी होती है? चांद की खुद की रोशनी नहीं होती, चांद के सूरज के इफेक्ट से वो अपने आप को थोड़ा सनशाइन करता है। अच्छा चलो, मैं इस तरीके से आपको पूछता हूँ, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये बताओ कि अगर अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो रसूलुल्लाह की एक हदीस है जहां पे अल्लाह कहता है कि वो हर रात में तीसरे पहर में ना, अल्लामा साहब क्या अल्फाज है? तीसरे पहर में, रात के आखिरी लास्ट हिस्से में। लास्ट चौथे पैर में। ये आखिरी हिस्सा में सुबह सादिक हाँ कहा जाता है इसको। हाँ, आखिरी हिस्से में अल्लाह पहले आसमान पे आता है रोज, ट्रू। है ना? सुने हो ये हदीस? नहीं, आप दोहराते हैं, मैं सुनिए शायद भूल गया हूँ, आप दोहराते हैं, कोई अच्छा, मसला नहीं है। अल्लाह जो अल्लाह है में वो, है ना अल्लाह। हाँ मैं जी बता जी। रहा हूँ आपको। हर रात में अल्लाह, एक मखसूस वक्त होता है उसमें अल्लाह जो है पहले आसमान पे आता है, ठीक है? अब ये जी, बताइए, ये लीजिए, ये अमित ने हदीस भी लेके आ गया, थोड़ा ऊपर से दिखाओ। मैं सही वॉइस मुस्लिम की हदीस। सुनो सुनो सुनिए, आप, मैं आपकी केवल वॉइस देख रहा हूँ, पॉकेट में है मोबाइल मेरे। अच्छा, मैं आपको हदीस बता देता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है 758B। अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह डिसेंड्स एवरी नाइट टू द लोएस्ट हेवन व्हेन 1/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नाइट इज ओवर and ट्रू। says, I am the Lord, who is there to supplicate me so that I answer him? Who is there to beg of me so that I grant him? Who is there to beg forgiveness from me so that I forgive him?
He continues like this till the day breaks. सुबह तक वो पहले आसमान में नाजिल होता है, आता है। मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई अली भाई, आप चूंकि जी मैकेनिकल में आप पॉलिटेक्निक किए तो आपका थोड़ा दिमाग चलता होगा कि एक पर्सनालिटी जो ऑलरेडी सब जगह मौजूद है तो वहां पे वो अलग से कैसे आएगी? जी, मतलब दुनिया की हर जगह है। मतलब मोमिनों को बताया है कि मतलब तुम अगर अपनी नींद कुर्बान करोगे ना तो तुम्हारी नहीं नींद नहीं कुर्बान। भाई मेरी भाई बात भाई सुनो, मैं कुर्बानी कुर्बानी ना अल्लाह को बड़ी पसंद है। कुर्बानी का सवाल ठीक है, नहीं है अली भाई, अली भाई, मेरी बात सुनो। यहाँ पे अल्लाह ने सीधा नींद ये कहना चाहिए था, सुनो ना मेरी बात सुनो अली भाई, अल्लाह को जी सीधा ये कहना चाहिए था कि भाई अपनी नींद कुर्बान करो, रात में नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा, इतना कहना चाहिए था। यहाँ पे अल्लाह ये कहता है कि मैं पहले आसमान में आता हूँ, नुजूल करता हूँ। तो जब ऑलरेडी आपने कहा कि अल्लाह हर जगह मौजूद है तो वो फिर अलग से कैसे आता है? वो तो ऑलरेडी मौजूद है। यार एक साहिल बात भाई यहाँ बताओ, देख दो मेरी बात सुनो। जब आप अपनी साहिल भाई गर्लफ्रेंड हाँ के एक दिल में सेकंड एक मिनट है एक तो मिनट फिर क्यों कहते हैं अली भाई एक गर्लफ्रेंड मिनट थोड़ा दरवाजा खोलो मैं आ गया? अली भाई एक मिनट। हाँ अमित क्या बोल रहे थे? हाँ साहिल भाई, अगर अल्लाह हर जगह है तो ये रात में अगर सोए हैं तो इनके पास में अल्लाह सोया होगा तो पहले पैर में उठा ले अल्लाह हाथ दे के नहीं उठ भाई अरे ठीक है यार, चल, रुको रुको चल नमाज पढ़। अली भाई, लेकिन हाँ पहले आसमान पे जाके आवाजें लगा रहे हैं। हाँ ठीक है, अली भाई से पूछते हैं। हाँ अली भाई, क्या कुछ गर्लफ्रेंड के दरवाजे की कुछ बात कर रहे थे क्या? मैं गर्लफ्रेंड आपके दिल में है, ठीक है। गर्लफ्रेंड मेरे दिल में है? नहीं, मैं मेरी बात सुना पूरी पहले। आप मतलब टोक क्यों रहे हैं मुझे? मैं पूरी बात मुकम्मल। अच्छा बोलो बोलो। गर्लफ्रेंड हाँ आप गर्लफ्रेंड से कह रहे हैं कि तुम मेरे दिल में हो और मैं तुम्हारे हाँ दिल में हूँ, हम्म ठीक है। तो फिर क्यों कहता है आदमी कि चलो मैं आ रहा हूँ आज तुमसे मिलने? अबे दिल में है तो फिर दिल में ही मिलना, घर में नहीं क्यों आ दिल रहा में है फिर नहीं मिलने? होती ना, दिल में नहीं होती ना गर्लफ्रेंड, तो कहाँ दिमाग में होती है? दिमाग में भी नहीं होती है। गर्लफ्रेंड एक तो फिर जगह पे कौन? होती है फिजिकली। अच्छा, हार्मोन से ज्यादा हाँ पड़ जाते हैं तो फिर अगर गर्लफ्रेंड दिल याद में आती है है। तो फिर जाने की जरूरत क्या है? दिल के अंदर दो दिल मिलके डिंगी डिंगी कर लो, मसला खत्म। हाँ, तो वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। हाँ तो इससे अच्छा मैं भी मतलब अली वही भाई, ये समझा है। रहा हूँ आपको। सच्ची सच्ची बताना, जो आप काफी देर से बाबू सोना की बात कर रहे हैं, आपकी कोई निब्बी है ना? आप जरूर लग रहे हैं कोई निब्बा है, आपकी कोई निब्बी जरूर है और आप उसके निब्बा हैं। सच्ची बताना अल्लाह कसम। ना यार, मेरी कोई निब्बी है ना मेरा कोई निब्बा है। नहीं, आप निब्बा होंगे ना। अगर आपका कोई निब्बा रहेगा तो फिर यार बिनते दिल असल में मिसरिया ना आदमी ना, देख पूरी कहना दुनिया का पड़ेगा ना। कॉन्सेप्ट देखे, पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है। हर आदमी के ना दिल में मोहब्बत होती है ना किसी चीज हम्म की। गई आपकी आवाज, गई क्या? मेरी आवाज गई? नहीं नहीं, नहीं आ आपकी गई। आवाज आ रही है साहिल भाई, इनकी आवाज गई। अल्लाह लगता आ है चुका निब्बी है का पहले कॉल आ आसमान गया। पे। निब्बी का कॉल आ अच्छा गया। निब्बी बोल रही होगी कि मेरा जिक्र क्यों कर रहा है उधर निब्बा मुझे क्यों कि पता आ बात रहा बात है? में वहां पे अल्लाह पे सवाल किया जा रहा है, तू बार बार मुझे इन्वॉल्व कर रहा है। हाँ, अगर इनका नहीं, इन्होंने कहा कि मेरे पास ना कोई निब्बी है ना निब्बा है। अगर निब्बा होता तो फिर कहना पड़ता पेश है कुल शबाब खिदमत आली जनाब। अली भाई आवाज आ रही है? अली भाई उन्हों का आवाज चला गया। गए उससे वो गए, बंदा गए, अभी आते चले आते गए। खत्म, वो बंदा टाटा बाय बाय। खत्म, टाटा बाय बाय। गाइस देखो, वो ये अल्लामा साहब, मैं ये बताना चाह जी रहा हूँ आपको कि ये हमारे मोमिन हजरात जो है किस लेवल की ब्रेन वॉशिंग की गई है कि एक पढ़ा लिखा इंसान का भी दिमाग चलना बंद हो जाता है। चले गए फिर से, आए फिर से चले गए। यही तो कुरान पे बताया गया है ना, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। घिसा हुआ। तो तो ये असल तो पे असल में मोमिनों पे फिट होता है अल्लामा साहब, असल ये पे तो मोमिनों मोमिनों पे। पे फिट, ये असल पे मोमिनों पे फिट, ये काफिरों पे फिट नहीं है। काफिरों का नॉलेज ओपन है, काफिरों का हार्ट ओपन है, काफिरों का थिंकिंग ओपन है। यहाँ पे कोई सील नहीं है, सील सिर्फ काफिर तो मोमिनों दिमाग के। चलाते हैं,
मोमिन कह रहा काफिर है दिमाग कि ये मोहब्बत या है, अंधविश्वास को एग्जैक्टली कहता है कि मोहब्बत है, ये कुछ चीज दिमाग नहीं साबित ही नहीं कर चलाते सकता। ये दिमाग नहीं चलाते इन्हों के दिमाग के ऊपर अल्लाह ने मोहर डाल दिया बिल्कुल, ये मरीज़ इश्क था साहिल साहब, छोड़ दें, छोड़ दें। आ गए वैसे जब इन्होंने कहा निब्बी ना, का कॉल खत्म हुआ। जी अच्छा अली आ भाई, गए? नहीं नहीं कॉल आ गया नहीं, था क्या? निब्बी का कॉल नहीं कॉल नहीं आया था और डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। अच्छा, अच्छा लेकिन अच्छा तो अली मैंने साहब अब कहा दोबारा मैं निब्बी का ही नाम लेना, निब्बा मत कहना, वरना फिर तलवार से तलवार टकराए अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा जी जी, तो कहाँ थे हम? जी हाँ, हम इस बात पे स्ट्रीम में। थे कि जहाँ पे अल्लाह हर जगह पे अगर मौजूद है तो वो पहले आसमान में फिर आते कैसा है? उसके लिए कोई चीज उसके लिए कोई चीज मुमकिन नहीं है, लामहदूद है, वो कुछ भी कर सकता है, मतलब वो कुछ भी पांचवें कर आसमान सकता है है, पक्का दुनिया पर भी। जी, पक्का कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर कादिर सकता मतलब है थे जैसे। अच्छा एक मिनट एक इन्नल्लाह मिनट अला कुल्ली शैइन कदीर यस अली साहब, अल्लाह कुछ भी कर सकता है, बेशक, पक्का? पक्का। क्या अल्लाह एक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद उठा ना सके? ऐसी कोई चीज नहीं, नामहदूद है यार, वो कुछ भी कर सकता है। कौन सा ऐसा नहीं, पत्थर बना दिया जो नहीं मतलब उठा पाया अल्लाह? सारी दुनिया मतलब आप उसी ने ये कह रहे बनाई हैं है। हर अरे मेरे अरे हर अली साहब, मेरी पहले सवाल सुन लो, पहले सवाल सुन लो। क्या अल्लाह ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद उठा ना पाए? दोबारा दोहराएं थोड़ा सोच सवाल। समझ के बताना। हाँ, अली साहब फिर से सवाल बोलूं सवाल? सिंपल सा है, बिल्कुल आराम से था कि कोई अल्लाह अल्लाह जो है कोई ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद ना उठा पाए, खुद ना उठा पाए, बना सकता है या नहीं? यार अल्लाह ने पत्थर बनाया तो जाहिर सी बात है उसके हुक्म से ही बना होगा। ऐसा पत्थर जो वो खुद उठा नहीं सकता, उठा सकता है, तो मतलब ऐसा पत्थर नहीं बना सकता ना जो वो खुद उठा नहीं सकता। और उसकी मर्जी वो नहीं भी उठा सकता। नहीं मर्जी नहीं, मर्जी की बात नहीं, आपसे ये कहा जा रहा है, आ मर्जी की सकता है बात पत्थर। नहीं। क्या वो ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद उठा नहीं सकता, उठा ना सके, चाह के भी उठा ना सके? यानी वो मिसाल क्यों के बनाया तौर ऐसा पे पत्थर, अली मतलब भाई, वो पत्थर अली क्यों भाई बनाया जो मिसाल खुद ना देता उठा हूँ। सके? क्या हाँ, मिसाल के तौर पे बनाए वो? जी, क्या हुआ? क्यों बनाए वो पत्थर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं उठाता है? नहीं हर क्यों चीज बनाए उठा वो सकता सवाल है। नहीं है। आप यार ये क्या, आप समंदर के किनारे बैठे हैं क्या? कौन बैठा है समंदर के किनारे? नहीं, मुझे नहीं पता भाई कौन मछलियां बाद बोलता में है। पकड़ना यार, निब्बी आपके पास है ना, सवाल समझे पहले, कोई ऐसा पत्थर बना सकता है कि नहीं जिसे वो खुद उठा ना पाए, वो कादिर है कि नहीं है? जैसे एक इलॉजिकल चीज पे आपने कहा कि जो ऑलरेडी मौजूद है फिर वो अलग से आ सकता है क्योंकि वो अल्लाह है, वो हर कुछ कर सकता है, इस वजह से आपसे ये सवाल किया जा रहा कि अगर अल्लाह हर चीज कर सकता है तो क्या वो ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद उठा नहीं पाए? अभी क्या होगा, जैसे उठा अली भाई आपकी एक क्षमता है, ठीक है, जी, एक 40 किलो का पत्थर या 50 किलो का पत्थर आप उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 टन का पत्थर आपको उठाना पड़े तो आपकी पतलून जो है वो गंदी हो जाएगी, वो पीली हो जाएगी, लेकिन पत्थर नहीं उठेगा। जरूरी तो नहीं उसी पीली हो, काली तरीके भी हो से, सकती है। अच्छा, वो हमारे एक यूजर भी है, सुपर चैट भेजते हैं, 1 टट्टी 3 रंग, तो यार तीसरा ब्राउन। हाँ, तो मेरे भाई अली, क्या अल्लाह कोई आपको कौन ऐसा सी होती पत्थर है? बना? आपको कलर बड़े कॉन्सेप्ट लगता है और टॉयलेट में बैठ के आप कलर ही ढूंढते हैं। जैसा ठीक है, अल्लाह वो नाजिल करते छोड़िए। कुरान की तरह। बना सकता है, ठीक नहीं है, बना चले सकता? आप। जल्दी जवाब दो यार, एक मैकेनिकल इंजीनियर है आप, ऑलमोस्ट पॉलिटेक्निक आपने किया है, कितना फटाफट आपसे जवाब निकलना चाहिए, हाँ बना सकता है, नहीं नहीं बना सकता है। अरे बोलो। अल्लाह, वो एक बात बताओ, अल्लाह पत्थर तो सारे बना देगा अल्हम्दुलिल्लाह, आपका कॉन्सेप्ट ये ऐसा कोई पत्थर अल्लाह बनाए जो अल्लाह खुद ना उठा सके, कहने का कॉन्सेप्ट हाँ यही है ना? हाँ, यही बोलने का मतलब है।
यही है ना। तो यार हाँ तो अल्लाह ताला ऐसे पत्थर को बनाएगी नहीं, नाउजुबिल्लाह। नहीं मतलब नहीं बना और सकता ना पहली अल्लाह। बार अल्लाह ने पत्थर गया बना गया दिया तो क्या इंटरनेट अल्लाह, गया नहीं नहीं आपका। मेरी बात सुने, अल्लाह सब बना सकता है, मेरी बात सुने। अच्छा अगर अल्लाह अल्लाह बना ताला को सकता है। पत्थर बना भी दे, मेरी बात सुने, अगर अल्लाह अच्छा ताला अल्लाह को बना पत्थर बना भी सकता है। दे तो क्या अल्लाह का, हाँ बना सकता है, तो अल्लाह ताला क्या खुद उठाने जाएगा? उसे तो कुछ रुको रुको हुक्म के रुको जरिए वो रुको पत्थर रुको खुद चला आएगा अल्लाह के पास। एक, अरे रुको, अभी आपने कहा कि अल्लाह ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद उठा नहीं पाए। आपने कहा बना सकता है। मैंने ये, मेरी बात तो हाँ सुने, मैंने फिर आगे भी तो फिर चीज को जोड़ा है। मैंने ये क्या? बात बोली है, फैक्ट है, इट इज ट्रू। मैंने बोला हाँ अल्लाह पत्थर को बना सकता है, लेकिन मैंने इस बात को आगे मेंशन भी तो किया है कि हाँ अल्लाह ताला ऐसा पत्थर बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता। ठीक है, और अगर बना भी दे तो अल्लाह ताला को तो पत्थर को हुक्म करने की देरी है, अल्लाह ताला उठाने थोड़ी जाएंगे नहीं उस उठेगा पत्थर को, ना वो तो वो, खुद अल्लाह के पास। नहीं अरे अल्लाह उठेगा ना, ताला क्योंकि खुद चल, अल्लाह ने ऐसा वो पत्थर हुक्म। बनाया। यार रुको तो सही अलीशा, आपने कहा कि ऐसा पत्थर बना सकता है अल्लाह, तो अगर ऐसा अल्लाह पत्थर बना देगा तो वो खुद उठा नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसने ऐसा पत्थर बनाया जो ना उठा पाए। वो खत्म हो गया, अल्लाह टाटा बाय बाय। कह सकते हो मुझे अल्लाह टाटा बाबा, आपका अल्लाह एक कैसे ऐसा पत्थर लॉजिक बना रहा है समझाए जो वो कैसे? खुद उठा नहीं पाए, तो आपका अल्लाह तो मजबूर साबित हो गया कि एक पत्थर नहीं उठा पा रहा है आपका अल्लाह। मजबूर? कैसी बात कर रहे हैं आप? साबित करें, क्यों अच्छा थोड़ा अगर रुक चले जाइए अल्लाह अली रब्बुल भाई। इज्जत ने पत्थर बना दिया। अच्छा जी अली अली भाई भाई एक क्या मिनट रुकिए। अगले कॉलर अच्छा भी हैं। एक मिनट एक सिंपल। मिनट अली नहीं, मैं आपसे बात करता हूँ। लुकास जी ने जी बोलिए। 4499 रुपीस का सुपर चैट भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया लुकास जी। कह रही हाई साहिल, थैंक यू सो मच लुकास जी। ये मिर्ची कलर वाला आपने सुपर चैट भेजा, थैंक यू सो मच। अच्छा मजीद किसी को सवाल करना है अली भाई से तो कर सकता है। अली भाई को देख के जी अपने अली शाह भाई भी आ गए हैं। मैं एक सवाल क्या करना हाल है चाहता था साहिल भाई, अली साजिद साहब भाई, से। कैसे हो सब? फर्स्ट जी क्लास हम अली सब भाई, बिल्कुल फर्स्ट ठीक क्लास। हैं। अच्छा मैं ये कह अली रहा भाई था, से मेरा एक सवाल था। इन लोगों ने तीन चार और जगह पे ना ये आर्गुमेंट सुन लिया है, ये पत्थर वाला आर्गुमेंट। तो अब इन लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि इसका जवाब किस तरह दिया जाए, क्योंकि तीन चार दफा हो गया है ये। मैं एक नया सवाल लेके आया हूँ। सवाल ये है अली शाह साहब के, गॉड जो एग्जिस्ट करता है क्या वो अपने आप को अनएग्जिस्ट कर सकता है? जी दोबारा बोलिए, आप थोड़ा हिंदी में बोल दीजिए, कोई मसला नहीं है। गॉड जो एग्जिस्ट करता है क्या वो अपने आप को अनएग्जिस्ट कर सकता है? अपना क्यों वजूद खत्म करेगा? कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? नहीं कर सकता। थैंक यू। हर बात पे कादिर नहीं है अल्लाह। चलें अब तीसरा सवाल मेरा, बात क्या साबित हो अल्लाह गए। मोहम्मद अरबी को गुमराह कर सकता है? दोबारा दोहराए आप, थोड़ा क्या अल्लाह नेट मेरा स्लो चला। मोहम्मद अरबी जी क्या अल्लाह मोहम्मद अरबी को गुमराह कर सकता है? नहीं। ये तो कुरान कह रहा है लेकिन कि गुमराह थे वो नबी, व वजदा का ज़ाल्लन फहादा। नहीं, गुमराह कुरान कौन से नबी वल्दोहा गुमराह पढ़े। थे? कौन से नबी को गुमराह बताया आपने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउजुबिल्लाह। किस नबी के ऊपर ये अल्लाह ने अपनी सूरह दोहा आयत पढ़े, पढ़ी? किस? रसूलुल्लाह। सूरह दोहा याद है आपको? पढ़ सुनाए। नहीं मुझे याद नहीं है, मैं आपसे फालतू में वद्दुहा क्यों बोलूं। वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला पूरा सूरह तो पढ़ने की वललआखिरतु जरूरत खैरुल है। लक मिनल ऊला वलसौफ युअतिक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा। बस बात ही पे हो है, गया। वो ज्यादा का बॉल लन अब पहले। बताएं अली साहब, व वजदा का ज़ाल्लन फहादा तर्जुमा करें। एक सेकंड में कर रहा हूं। जी अरे उनको कहाँ आएगा, तुम ही कर दो यार साजिद। जी। और हमने आपको गुमराह पाया तो सही रास्ते दिखाए मैंने। अच्छा, झटका लग रहा ना अली भाई, ऐसी नहीं ऐसी मुझे चीजें झटका नहीं पता लग चल। रहा।
हाँ जाल का अल्हम्दुलिल्लाह मतलब क्या जब होता है? आप देख लें जाल का माने क्या होता है। ववजदा का जाल लन फहादा, अब देख लें कुरान में जाल का मतलब क्या होता है। आप बता दें। गुमराह, भटका हुआ। मैंने आपसे यही कहा था कि गुमराह कर सकता है कि नहीं मोहम्मद अरबी को, आपने कहा नहीं, कुरान में तो है कि गुमराह थे नबी, मतलब बस नहीं करने यार, वाला अल्लाह। इसका मतलब ये है कि किसी भी वो आम जाल की जाल तरह जाल 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 के मायने, जाल के दौलन तर्जुमे और दौलन 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 के माना गुमराह होता है। या अच्छा जी। इंडियन इंडिया देवबंदी आलिम ने ज़ालिम पढ़ते हैं, और बरेलवी फिरके में भी इसको ज़ालिम पढ़ते हैं। ऐसा दो किस्म का होता है। तो साजिद भैया मैं भी इंडियन फिरका का बहुत प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए ज़ालिम बता दिया। जी और वैसे अरबिक लोग इतना डीप में जाएंगे तो इनको तो तर्जुमा तक नहीं आता। इतने डीप में अगर हम लोग ग्रामर में जाएंगे तो कहाँ समझेंगे। वैसे सिंपल पूछ लेते हैं, जॉल का मतलब क्या होता है, ये जवाब दे देंगे। जी ज्वाल अली के साहब। मायने कई होते हैं, क्या ग्रामर जो होती है ना, उसके कई सेंटेंस बन जाते हैं। अब इसका वो मतलब किस क्या होगा मौजू कि पर मैंने क्या आपको बात। अल्लाह पाया। नाउजुबिल्लाह। अल्लाह अच्छा, अल्लाह अगर कैसे पाला। गुमराह नहीं थे, सुने, गुजाल का गुमराह मतलब अगर नहीं गुमराह थे, के अलावा, गुजाल का मतलब गुमराह के अलावा और कौन कौन से मतलब होते हैं, जरा बताएं। ये अच्छा सवाल था, शुक्र। कभी भी होगा उससे रिलेटेड होगा, उसका अपोजिट बिल्कुल नहीं होगा। बुराई का अपोजिट हो जाता है अच्छाई, और अच्छाई अच्छा का चले अपोजिट चले, बुराई। मेरी बात सुने, मैं इसका नहीं, जो बात सुने, मैं कॉन्सेप्ट है आपको ना साबित जाल का। करता हूँ कि गुमराह क्यों कहा, मैं आपको बताता हूँ। गुमराह इसलिए नबी थे क्योंकि जब मेराज के सफर पर जा रहे थे, शक सदर हुआ था, सीना चीरा गया था, तो ब्लैक ब्लैक क्या निकाला गया था दिल से उनके? बुराई। शक सदर जानते हैं, जब सीना चीरा गया था, बाईपास सर्जरी हुई थी। हाँ 2 बार सर्जरी हुई थी, हाँ, 2 ये बार तो मुझे सर्जरी हुई पता थी, तो है। क्या निकाला? अच्छा, कहाँ तक हुई थी मालूम है ना? नहीं ये नहीं पता मुझे, अच्छा चलें, कोई ये नहीं, तो हम पता है। तलवारों तक नहीं जाते। तो ऊपरी ऊपरी है, नाभि के नीचे तक हुई थी। तो बहरकैफ क्या निकाला गया था उसमें? दिल को साफ करके निकाला गया था, मतलब दिल को हाँ, निकाल तो कर दिल में साफ क्या किया था? गया था। क्या था दिल में कि निकाला गया था उसमें? ब्लॉकिंग होगी कहीं ना कहीं। ब्लॉक ब्लॉकिंग थी। वॉल वॉल बनते नसें होंगे ब्लॉक थी। वो, वॉल बनते, ऑपरेशन हुआ था ऊपर एक। ये ओपन हार्ट भारी था सर्जरी थी। यार, ये अली भाई का ये जवाब एकदम भारी था। नसें ब्लॉक थी अंदर के ना, पर उसी नसों को जोड़ा गया तो इतनी ताकत आ गई कि 40 मर्दों की शहावत मिल गई उनको। बहरकैफ, तो आप मानते हैं कि हाँ अंदर से कुछ ये निकाला गया कहाँ था से ब्लैक ब्लैक। साबित है, ये कहाँ से साबित है कि 40। दिखला दूं तो? 40 दिखाएं आप। दिखला देंगे, वहां तक भी चलते हैं, लेकिन पहले ये बताएं कि अंदर से क्या निकाला गया था। बुराइयों को निकाला गया था ना, जो नबी बुराइयां करते थे, गुमराह थे, भटके हुए थे। ब्लॉक बुराइयों को नहीं यार, ब्लॉक किस चीज को निकाला गया था फिर? किस चीज ब्लॉक को निकाला गया था? क्या चीज का ब्लॉक ब्लॉकेज था? ब्लॉकेज थी भाई, तो क्या चीज की उसको रिपेयर ब्लॉकेज थी? किया, दिल साफ किया गया, क्योंकि दिल जो मकाम है वो केवल खालिस, अच्छा साहिल अरे साहब, इनकी आवाज तुम्हारा मुझ अभी तक क्लियर इंटरनेट नहीं आ दिल रही साफ जो है। है करने के लिए खालिस बोलो अल्लाह अल्लाह के को। लिए। बात तो ना आप खाना खाएं बात ड्रॉप तो कर अल्लाह रहा ताला है। ने उन्हें कहा कि और बुगज ना हो, मेरा मानना ये है। इनकी आवाज क्या क्या क्लियर नहीं आ रही सफाई है। हो, आपकी क्यों आवाज ये चली गई सफाई थी। हो इसीलिए रही है ना, क्या गंदा है तो सफाई हो रही है ना। सफाई चीज, साफ चीज की तो सफाई नहीं होती। चीज गंदी है तो उसको साफ किया जा रहा है ना। साफ दिल को साफ तो नहीं किया जा रहा ना मेरे भाई, दिल में गंदगी है तभी तो साफ की जा रही है ना। नहीं होती गंदगी तो साफ करने की जरूरत ही ना होती। यार अल्लाह ताला जिस मकाम पे आप जिस जगह बैठते हैं कुर्सी पे, तो कुर्सी को साफ करके नहीं बैठते। आप अपनी तो कुर्सियों को कुर्सी साफ करके गंदी थी बैठते हैं ना, इसका रोजाना। मतलब तभी तो हम लोग साफ करके बैठे। जब मुझे कुर्सी इसी साफ नजर आ रही है, मैं क्यों साफ करूंगा उसको, बैठ जाऊंगा उस पर सीधा सीधा। यार अल्लाह एक शान है, समझ रहे हैं आप। तो साणे। हाँ, अल्लाह का शान है। अल्लाह साणे साण कौन? अच्छा क्या बोले? क्या कहा था अल्लाह मैंने एक यार? शान है। अच्छा
अच्छा शान है। लामहदूद है, कोई बाउंडेशन नहीं है, वो चाहे वो कर सकता है। अब रहा बात यही आपने तो कहा कि कादिर, अल्लाह ताला ने उनको यही अभी तो आपने कहा कि वो ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो ऐसा पत्थर नहीं बना सकता जो वो खुद ना उठा सकते, वो अपने आप को खत्म नहीं कर सकता। कितनी चीजें तो अभी आपने खुद ही गिनवा दी जो वो नहीं कर सकता, फिर आप कह रहे हो सब कर सकता है। 10 चीजें वही खुद वो अपने आप गिनवाने को के क्यों, बाद कि वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, फिर एंड में वो सब कुछ कर सकता है। मैंने कोई इस चीज पर इन्नल्लाह थोड़ी लगा इन्नल्लाह अला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कादिर पे जो अल्लाह का कादिर मतलब का बात कहा गया है ना, आप लोगों ने तो बहुत सारे आर्गुमेंट किया। यहाँ पे मेरा भी एक एडिशनल बात है, मैं कुरान के आयत से कहूंगा। जैसे कि अल्लाह ने कुरान के आयत पे कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ मेरे इबादत के लिए पैदा किया। सो अल्लाह का चाहत है कि जिन और इंसान अल्लाह का इबादत करे। लेकिन ये बात तो जाहिर है, हम बहुत सारे काफिर लोग हैं, नॉन मुस्लिम लोग हैं, अल्लाह का इबादत नहीं कर रहा, तो अल्लाह का चाहत तो पूरा नहीं हो रहा। तो फिर अल्लाह का कुदरत से हम लोग बाहर निकल गए या नहीं? तो अल्लाह फिर कादिर मतलब कैसा रहा? देखें, अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह जिक्र किया है कि हमने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, हमने उनके कानों में शीशे डाल ये तो अपारग है कि आजिज है के कहा, ये तो कादिर मतलब का बात नहीं है, ये तो आजिज लोगों के बात है। और जिसे चाहते हैं उसे हिदायत नहीं दे। जैसा कि आपका जो औलाद है ना, जो बच्चा बच्चियां है ना, आपका बच्चा बच्चियों को आप कह रहा है कि मेरे फॉलो करो, लेकिन आपका बच्चा, लिसन टू मी प्लीज, वन सेकंड लिसन टू मी। तो आपका बच्चा बच्ची आपका फॉलो नहीं कर रहा है, आपका बच्चा बच्ची आपका फॉलो नहीं कर रहा है, फिर आपने कहा दिया ये गुमराह हो गया है, मेरे बात नहीं सुनेगा, ये लोग आजल में वो रेजिल है। तो आप तो आजिज हो के ये बात कहा, आप उन लोगों पर कादिर नहीं है, इसलिए ऐसा बात कह दिया। तो अल्लाह आजिज हो के जब अल्लाह ने देख लिया कि ये लोग तो मेरे कुदरत के बाहर निकल गया, तो मेरे को क्या करना, अभी थोड़ा बकवास कर लेना, खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, ये तरह सब बकवास कर लेना, अदरवाइज मेरा स्टेटस नहीं रहेगा। अच्छा, अली साहब ने अभी कहा था कि अल्लाह ने उनके कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया है, आयत से साबित करें। अच्छा, भाई को मेरे ख्याल से हमको अलविदा कहना चाहिए क्योंकि ओवरडोज हो जाएगा भाई के लिए। अली भाई, जी साहिल भाई। आप, हाँ अली भाई, आपसे हमने काफी इस पे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया। आप थोड़ा सुकून से गौर फिक्र करना इन बातों पर। फर्स्ट टाइम आप जुड़े हैं, चैनल कब से देख रहे हैं आप? यार मैं ना आवाज़ हक का चैनल देख रहा था, देखते देखते पता नहीं क्या हुआ, फिंगर टच हो गई, वो आपका चैनल आ गया। माशाल्लाह। देखो, अल्लाह भी चाहता है कि तुमको सच्चाई पता चले। आप बाकी वीडियोस भी देखना, गौर फिक्र करना, और नहीं, अल्लाह ये भी तो चाहता होगा कि मतलब क्या तुम यही इनका जरिया बनोगे ईमान का, ये भी तो चाहता होगा। गौर फिक्र आपको नहीं करना है, मतलब अंधविश्वास में ही रहना है। अंधविश्वास है ही नहीं यार, मुझे तो नहीं दिखता अंधविश्वास है। इतने सारे तो अंधविश्वास गिना दिए आपको, ये अंधविश्वास नहीं है भाई। क्या है फिर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से पाक थे या उन्हें बाद में पाक किया गया? शुरू से पाक थे। अच्छा, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहहिरकुम तत्हीरा। क्या मतलब हुआ इसका? चले आप बता दें। और अल्लाह तो चाहता है कि अहले बैत से रजस और नापाकी को दूर कर दे, चाहता है नहीं दूर अभी, वो अल्लाह चाहता है। तो मोहम्मद और उसके अहले बैत सारे नापाक, तभी तो पाक करने की बात हो रही है। देखिए,
ये पाकी जो है वो दूसरे किस्म की पाकी का जिक्र है। तो नहीं है और ना, जो जिस मैंने तरह के जो वो पाक देखिए नहीं है मेरी उसी तरह बात की पाकी का करे, जिक्र है ना। कौन सी मैं पाकी का उस तरीके मतलब? की बैतुल खला से होकर आए थे, गंदगी लगी थी, लेटरिन लगी थी, वो वाली पाकी या दूसरी पाकी? नहीं, रूह की पाकी। हाँ, तो वही पूछ रहे आपसे कि रूह के तौर पे रसूलुल्लाह की रूह जो थी वो पाक नहीं नापाक थी ना, थी ना, बाद में जो की गई ना। बाद में पाक की गई। अच्छा, हेलो हेलो जी भाई, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आ जी रही आ आ रही रही। है चलो आपकी अली बात। भाई को हम अलविदा कह रहे कहते हैं हैं कि फिर। आप लोगों को ये सब टॉपिक्स में मतलब इतना कंफ्यूजन है, कौन सी पाकी क्या पाकी। आदम आदम यहाँ पे एडम आम साहब, मुसलमान एडम होते अफीक हैं, साहब, उनको तो एडम पता अफीक नहीं साहब, होता कुरान हदीस के बारे में। एडम अफीक साहब 2 मिनट रुकिए, आपके साथ अच्छे से बात करेंगे, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप जुड़े और गौरव फिक्र करे और ऐसी मैं गौरव फिक्र अंधविश्वासी नहीं ना कर बने। पाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, इसी हाल में इसी इसी हाल पे मर अंधविश्वास जाए में ही आप इंशाल्लाह मर जन्नत जाएंगे। है। इसी हाल पे जन्नत है। मर जाएंगे इंशाल्लाह जन्नत में क्या जन्नत है। मिलेगी आपको? जन्नत में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। रंजो गम खत्म हो जाएगा, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, क्या टेंशन क्या खत्म हो मिलेगी? जाएगी, बेगैरतों से खत्म, मतलब बेगैरतों से क्या डिबेट क्या करना मिलेगा खत्म हो जन्नत जाएगी। में आपको? जन्नत में क्या क्या मिलेगा? सारी फैसिलिटी, सारा क्या प्रोटोकॉल। क्या? अल्लाह ने क्या क्या बताया है? अल्लाह ने तो बहुत सारी चीजें बताई हैं। क्या क्या? 2-3 बताओ। 2-3 पहले बार तो तुम्हारी सारी टेंशन है, रंजो गम, परेशानियां हाँ, खत्म, और दर्द खत्म। ठीक है। और खाना खाओ और बस बैतुल खला जाने की जरूरत नहीं, बस डकार मारो, खत्म। सारे अच्छा, और बेगैरतों से भी तो आपकी जान एक छूटेगी ना, वो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, मिनट, एक मिनट, सारे अली भाई, अली बेगैरतों से। भाई, अली भाई, अली अली शाह भाई, 1 मिनट रुको। हाँ अली भाई, और क्या बताया? और सारे बेगैरतों से जान छूटेगी। और नहीं, बस मखसूस क्या क्या बताया अल्लाह ने जन्नत में? जन्नत का जो प्रोटोकॉल है वो मिलेगा यार। तू इतना तो समझते दूध हो की यार, नदियां होंगी प्रोटोकॉल ना? में क्या होता है। जी होगी, दूध की नदियाँ, दूध और शराब शहद की की नदियाँ, नदियां होंगी ना? शादियाँ होंगी। ट्रू, हाँ क्या सच है। करोगे दूध और शहद की नदियों का? क्या करोगे? पियेंगे। अरे भैया शराब का नदी का होना प्लीज। नहीं नहीं, शराब में तो नशा ही नहीं होगा, वो शराब जो है वो तो फालतू का बोल दिया है। शराब वो ओ का अच्छा। नशा। उसको शराब कहना शराब की तौहीन है। और अल्लाह के उसमें मुंह से नशा ना हो। वो छोड़ो और अली भाई, अल्लाह अली और भाई, अली भाई, अली अल्लाह। भाई, जी जी। अली भाई, जी बोलिए। ये जी बोल, दूध सुन रहा हूँ, दूध बोलिए। हाँ, दूध की नदी का करोगे क्या? दूध और शहद की नदी का चाय बनाएंगे। चाय बनाएंगे? आग कहाँ से लाओगे? हमारे पास आओगे तो भगा देंगे हम। वहाँ की जरूरत क्या है। अरे जहन्नम में आओगे ना चाय आग कैसे लेने, बनेगी? हम तो ठंडी देंगे चाय नहीं। पियोगे? अरे ठंडी चाय कैसी लगेगी? साहिल भाई, साजिद भाई, बेगैरतों से जान छूटेगी जो जन्नत में। कैसी जन्नत है और कैसे बेगैरतों से जान छूट रही है जहाँ पे हौजे कौसर पे ही एक पीडोफाइल बैठा हुआ है। नहीं, सिंपल सी बात है, ये चाय अगर बनाएंगे तो आग हमसे लेने के लिए आएंगे जहन्नम में, अरे और आग हम ना, देंगे नहीं। आग नहीं नहीं, आग आपसे कर लेने आएंगे भाई। क्यों अपने अच्छा लेने हाथ से आएंगे। पकाएंगे चाय। अली भाई, अली भाई, अली जी। भाई, अली भाई, नदी में तो नहाया जाता है, तो ये दूध और शहद की नदी में नहाओगे क्या? नहीं, नहाने का भाई मैं क्यों नहाऊंगा यार, ये तो पीने वाली तो चीज है, नेमत है अल्लाह नदी की, में तो खाएंगे। नहाया जाता है कि नहीं नहाया जाता है? अरे नदी में भाई क्या करना है जिनके आदमी? भाई नदी में नहाया जरूरी थोड़ी है नहाया जाए, नदी में से मछलियां भी पकड़ी जाती हैं। तो नहाते तो है ना? अरे भैया जिनके पाप पड़ गए हैं वही नहाएंगे ना। हमारे तो तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध वहां पे की पाक नदी साफ होकर में जाएंगे। और शहद, दूध की नदी में और शहद की नदी में नहाओगे तो मूंगी और जो मक्खियां हैं वो तुम्हारा क्या हाल करेंगी? यार मैंने बताया तो ना, मैं सारी परेशानियों वाली चीज खत्म हो जाएगी। लॉजिक तो तो यही गलत है आपका, ये जो नदी मक्खी क्यों नहीं रखा होगी है? ना मच्छर होगा। दूध दूध सोच और लो। शहद की नदी रखने का तुक क्या बनता है? ये दूध और शहद की नदियां होंगी, असल करना में क्या क्या है? है ना। दूध और शहद दूध और शहद की नदी का अली करना क्या भाई है? सोच लो, जी अगर जी। आप शहद की नदी में नहा के निकले और शहद की मक्खियों ने देख लिया और कहीं खास जगह पे चिमट गई, फिर तो हर्निया हो जाएगा आपको। यार मैंने पहले ही आपको बता दिया, फिर माँ से हर्निया का इलाज रंजोगम कौन करेगा? नहीं, मेरी बात सुने, मैंने आपसे कहा ना, माँ सारी परेशानी ही खत्म हो जाएंगी। तो मक्खी और शहद कहाँ, वो मतलब मधुमक्खी और मक्खी और मच्छर कहाँ से आ गए। अच्छा, जैसे आपने हूरों के कहा कि साथ क्या मछली रहेगी। करोगे? अली भाई, हम्म। हूरों के साथ क्या करोगे? हूरों के साथ जो उनका हक है वो करेंगे। क्या उनका क्या हक है? वो तुम्हारी, अरे वाह, तुम अपनी ठरक मिटाओ और तुम उनका हक बोल दो।
बोला यार एक बात बताओ, जो अल्लाह ताला को देख ले उसे क्या ठरकीपन आएगा, वो तो बस अल्लाह को ही देखते रहेगा। जुम्मे वही वाले दिन अल्लाह अल्लाह से आपको मुलाकात होगी, वही अल्लाह आपको ठीक है। बता रहा है कि फिर आपका जो एक जन्नत मिनट अली जन्नत भाई जी जी आप वही मुकम्मल करें, हाँ अल्लाह आप मुकम्मल करें मेरे मेरे भाई अली भाई वही जी। अल्लाह और आपके रसूल बता रहे हैं कि आपका सामान मुबारक जो है वो क्या कहते हैं उसको फ्लैसिड आला तनाजुल हाँ स्टेज में नहीं होगा। आपका आपका जो सामान मुबारक है हमेशा ऐसा सलामी देता रहेगा स्टैंड बाई में मस्जिद के मीनार की तरह, मस्जिद के मस्जिद मीनार की तरह। तो ये ठरक नहीं है तो क्या है? ये ठरक नहीं है यार, ये इसे ठरक थोड़ी कहेंगे। 70 अब साल जो तक क्यों 70 आप 70 अपनी मेरी बात सुने, आप हाँ अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं, वो ठरक है? नहीं बीवी के साथ नहीं है लेकिन तो फिर बीवी के साथ एक मिनट बीवी के साथ जो आदमी हम बिस्तरी करता है तो वो कितने मिनट के लिए करता है? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट, बस खत्म टाटा बाय बाय। ये अपने हिसाब से बताते हैं ना, चले हम अपना नहीं बताएंगे, मैं वो अपना अपने मजाक मैं कहेंगे अपने यार हिसाब इतना से देर चलते हो। जी जी बोलिए। ठीक है 10 मिनट पकड़ लो तुम्हारे हिसाब से। इधर तुम 70 साल तक करोगे, तुम्हारा सामान मुबारक जो है हमेशा सलूट देता रहेगा। निकलेगा ये टेढ़ा ठरक रहेगा। नहीं है, ये क्या है ये ठरक तुम नहीं अल्लाह है। को नहीं देखिए देखोगे अच्छा दुनिया एक बात 70 बताएं, चला 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 जो मेरी है। बात बताएं। अभी हाँ, ज्यादातर लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? किसके किसके पीछे? पीछे भाग रहे? किसके पीछे? सेक्स के पीछे। तो ठीक आपके है, तो रसूलुल्लाह अल्लाह भी भाग ताला रहे थे। पैसा भी बोल आपके सकते हैं, पर रसूलुल्लाह ने पैसे क्या के पीछे किया? भाग रहे हैं। एक मिनट आपके रसूलुल्लाह ने क्या किया? एक मिनट रुको ये लो उन्होंने तो भाई दुनिया को बताया है कि देखें क्या अगर बताया? किसी एक को ही देखे, गुसल मेरी में बात सुने एक ही यार, एक गुसल में सेकंड मेरी 11 बात तो 11 सुन लो, बीवियों को निपटाओ। ये लो ये मेरी बताओ बात तो सुने ये लो ना यार। मैं पहले या बताता तो हूँ ये देख के बताओ। मुझे बोलने देना, मुझे बोलने हाँ देना, बोलो मुझे बोलो बोलने दे। बोलो। देखें वो अल्लाह के नबी ने भाई शादी इसलिए करके दिखाई ताकि जो उनकी उम्मत है उनके अंदर ये कल्चर ना हो कि एक को चक्कर में। बहुत से उन्हें मालूम है, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बता रखा था कि तुम्हारी उम्मत में लोग ऐसे भी होंगे जिनसे एक से गुजारा नहीं होगा। हम्म तो उनके लिए ये एक मतलब ऑफर था कि चलो भाई आप कर सकते हो, हम्म ठीक है। तो 4 कर सकते हो। उनके जमाने में 9 थी लेकिन अब 4 है। हम्म तो नहीं तो ये सेक्स का भूखा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि एक ही रात में। ये देखो बुलुगुल मराम की हदीस है, रसूलुल्लाह यूज्ड टू हैव इंटरकोर्स विथ हिज वाइफ्स वन आफ्टर अनदर विथ अ सिंगल बेथिंग agreed upon the wordings मुस्लिम वर्डिंग इन मुस्लिम। रसूलुल्लाह एक ही गुसल में सारी बीवियों के साथ जो है वो एक के बाद एक डिंगी डिंगी करते थे। तब तो जो धनुष की तरह इसका मुड़ गया होगा। नहीं नहीं, तो उसमें बुराई क्या है? मुझे बताएं उसमें क्या बुराई है? कर सकते हैं, बीवी एक आपकी तो आपकी प्रॉपर्टी है। अरे एक बात बताएं, आपकी अच्छा प्रॉपर्टी है, आप बीवी चाहे तो प्रॉपर्टी है मकान आपकी। बनाए चाहे आप मकान ना बनाइए, आपके ऊपर है ना, आपको यार क्या लेकिन तकलीफ है? बगैर नहाए बीवी बगैर बात लिए एक मिनट एक नहीं मेरे को एक बात से ऑब्जेक्शन है, बीवी आपकी प्रॉपर्टी है। बीवी भाई एक बात बताओ, जब आपका निकाह हो गया, आपका बाउंड हो गया, मतलब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई या नहीं हुई? भाई वाह क्या बात कसम है। से बोलता हूँ वाह गाइस 3000 लोग सुन रहे हैं। आप सोचोगे इस्लाम क्या सोच देता है एक आप इंसान को। दोनों की भाई आपस में इस्लाम शादी हुई है सोच ना, नहीं देता। मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने, उसे बेच भी मेरी सकता है बात सुने। प्रॉपर्टी को। इस्लाम आप दोनों की आपस में शादी हुई है ना, आपकी और आपकी बीवी की। तो होय 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 आपको ये होय कहना होय। चाहिए था कि यार मैं अपनी बीवी की प्रॉपर्टी हूँ, आपने बीवी को अपनी प्रॉपर्टी क्यों बना लिया? तो ये लख की अच्छा लानत प्रॉपर्टी, वाला अमित लगाओ यार। लत की लालत वाला यार बात कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ ना। असल में क्या है ना, आप कोई भी चीज है वो आपके अंडर है ना, तो आप जैसा चाहेंगे उसको ऐसा करेंगे ना। भाई जो आप अल्लाह हाँ अपनी ताला बीवी ने ये के उसका अंडर सोच क्यों मेहर नहीं हो? बता, आप अपनी बीवी ये के अंडर सोच है क्यों नहीं हो? गाइस। वो आप उसकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं हो? वो आपकी प्रॉपर्टी क्यों है? वो जैसे नहीं नहीं मर्जी अली आपको भाई ट्रीट करे, ऐसा क्यों नहीं है? भाई अली भाई देखे नहीं सवाल जी ये नहीं जी। है। एक मिनट अली शाह भाई और अली भाई सवाल ये नहीं है कि वो उसकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, ना उसको ना वो उसकी प्रॉपर्टी है ना ये उसकी प्रॉपर्टी है। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि ये कह रहा है कि एक बार जब आपके अंडर में आ गई अब आप जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं, भाई जुल्म जुल्म नहीं कर सकते। लेकिन तुम उसको प्रॉपर्टी मानते हो।
हाँ, जुल्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, जुल्म नहीं कर सकते, वो गुनाह है। लेकिन आप उसे प्रॉपर्टी हक मांगते दें, जो उसे प्यार है, हाँ, जो प्रॉपर्टी है यार। एक बात बताओ, मेरे हाथ से मैंने अगर उसे छोड़ दिया तो खत्म, रिलीज कर दिया मैंने, खत्म। उससे मैं बेच फिर भी उससे कोई सकते हैं मात्रा फिर, छोड़, है क्या? उससे प्रॉपर्टी बेच को भी बेच सकते भी हैं। सकते हैं ना। उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? मैं दोबारा एक बंदा बोल लेना आराम से। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? साजिद पूछो। साहिल, अच्छा मैं कहता हूँ अगर आपकी प्रॉपर्टी तो आप उससे बेच भी सकते हैं फिर। यार बेचने वाली नहीं, मेरे को नहीं भारी, मेरा उससे तालमेल नहीं हो रहा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो खल्ली तो वल्ली। तलाक दे सकते हैं, है ना, कि जा जाता हाँ, है चला। तलाक देना। किराए पे देने का क्या चक्कर है? किराए पे देने की तो इजाजत है मतलब प्रॉपर्टी? हाँ, किराए नहीं, को हाँ, इस्लाम में, रेंट पे भी दे सकते इस्लाम हैं। में नहीं है। अच्छा नहीं, अच्छा, इस्लाम में नहीं है। ठीक। वो तो योग प्रथा में है। अली भाई, अली भाई, अली जी भाई, मेरी जी। तरफ से ना एक, आपको अरबी आती है कि नहीं आती है? नहीं, मुझे नहीं आती अरबी। अच्छा, तो अरबी में कोई अच्छी सी गाली वल्लाह, सोच करके मेरी तरफ से आप रख लेना, ठीक है? अच्छा, वल्लाह ये इंत प्रॉपर्टी हुमार। जो है, अली अली भाई, ये प्रॉपर्टी जो है वो आपका अल्लाह कहता है कि आप जब निकाह करते हो, यानी जी। सेक्स करते हो अपनी बीवी से, तो हम्म आपको उजरत देना है। ठीक है, हम्म उजरत का वर्ड यूज हुआ है कुरान में। हम्म। मजदूरी देना है, मजदूरी, उजरत मजदूरी को कहते हैं। ठीक है, जी। हम्म। तो आपने एक बार उजरत दे के, मजदूरी दे के उसकी, जिंदगी भर उसको यूज कर रहे हो प्रॉपर्टी को। भाई जिंदगी भर यूज वाली क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर? एक बात बताओ, वो मेहर की आपका बात अल्लाह कर रहे हैं कहता आप, है मेहर। उजरत देना है वो आपको, मेहर, उजरत। हाँ हाँ, महर मेहर, नहीं वो है, मेहर। महर बता दो, कुरान में महर बता दो। उजरत वही है, अटैचमेंट है भाई, मेहर उज का है अटैचमेंट है। है उजूरहुन्ना, उजूरहुन्ना। उजरत किसको भाई कहते हैं? उजूरु, वो, उजूरु हुन्ना जो है, इसका क्या मतलब है? अब एक बार क्या आपके साथ ये, क्या है, मेरा जहन से नाम निकल रहा है, कौन कौन है आपकी स्ट्रीम पर अभी इस टाइम? मैं बस ऑडियो सुन रहा हूँ भाई। अल्लामा साहब है। हाँ, अल्लामा साहब बताएंगे उजरत का कॉन्सेप्ट, मतलब उजरत का तर्जुमा। हाँ, अल्लामा साहब। जी जी हजरत, उजरत होता है क्या कहते हैं, वाह तो हुन्ना उजूरा हुन्ना, उजरत मजदूरी, उजूर होता है मजदूरी। उजरतुन, उजरतुन लफ्ज का जमा है। उजरतुन का माना होता है मजदूरी, उजरतुन का माना होता है किराया, उजरतुन का माना होता है बदला। हम्म। जो आपने सर्विस लिया, इस सर्विस के बदला में जो देते हैं उसको उजरत कहते हैं, उसको हाँ किराया तो कहते कहना हैं। जो उजरत को घर आपने या भाई, वो उजरत को किराया। जुमले में इस्तेमाल करें, उजरत को जुमले में इस्तेमाल करें। मजदूर की, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको उसकी उजरत दे दो। अब आपको समझ में आ गया होगा उजरत का मतलब। जी जी। तो हाँ, वो मेहर है, मैंने बताया ना, वो फिर मेहर महर, का महर कहाँ कॉन्सेप्ट है। हुआ? मेहर का लफ्ज नहीं है भैया, यहाँ पे उजरत का लफ्ज है। यानी आप उससे जो सर्विस ले रहे हो, सेक्सुअल सर्विस, निकाह का मतलब ही सेक्स होता है, तो उसके लिए आपको उजरत देना है, उसको सर्विस चार्ज देना है। आपकी आपकी आवाज ड्रॉप हो गई थी बीच में, मैं मुकम्मल मतलब वो सुन नहीं म- पाया, क्या बात हुई आप लोगों के बीच में? मैं ये कह रहा हूं कि अभी अल्लामा साहब ने मतलब बता दिया, उजरत यानी आपने सर्विस जो मजदूरी, आपने ली है, हाँ उसका मजदूरी, चार्ज देना। मजदूरी। हाँ, तो जी जी। निकाह का मतलब भी सेक्स के उसमें आता है। तो आप जो सेक्स की सर्विस ले रहे हो अपनी वाइफ से, उसके बदले में आपको उसको मजदूरी देना है, उजरत देना है। ठीक है। मेहर। हाँ, फिर हम्म। महर पे आ गया उजरत। यार वो मेहर मजदूरी है, वो मजदूरी, है, उजरत है ही नहीं यार, ये उजरत है नाम दिहाड़ी। अल्फाज। लेकिन जो हमारे उलमा इकरामों ने निकाला, अरे मेरे भाई, मेरी बात तो सुन लो। दिहाड़ी और मजदूरी, वो दिहाड़ी और मजदूरी इतने बुरे अल्फाज नहीं होते जितने बनाकर जो तुम पेश कर रहे हो। अच्छा, तो दिहाड़ी देते हो तुम? दिहाड़ी नहीं है यार, वो मेहर। अरे, तुम्हारा अल्लाह यूज कर रहा है वर्ड दिहाड़ी का, दिहाड़ी दे दो उसको। हाँ तो भाई एक बात है, जो आप, एक चीज है वो इसलिए मेहर का कॉन्सेप्ट है
जो दिहाड़ी बोलो, कॉन्सेप्ट दिहाड़ी। इसलिए है, देखिए मेरी आपको बात क्यों सुने पहले, आपको मेरी क्यों बुरा यार लग रहा है मेरी दिहाड़ी बात, वर्ड? मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ, दिहाड़ी समझे आप, चले मैं आपको हाँ, समझाऊं, दहाड़ी है हाँ, जी। हाँ, जी दिहाड़ी बोलो, हाँ, चले बोलो, वो अभी अपनी वाले, वो बात रखो। इसलिए है, हाँ वो अब वो इसलिए है, अगर आपसे मतलब उनके मतलब अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, आप उसे रिलीज कर सकते हो, तो जो पैसे आपने दिए हैं वो उससे अपना गुजारा कर सके, और जब वो पैसे खत्म हो जाए तो दूसरा निकाह कर सकती है वो। नहीं, नहीं, वो तो कॉन्सेप्ट तुम इसलिए तो था। दिहाड़ी तो तुम वन टाइम दे रहे हो ना भाई। सर्विस की दिहाड़ी तुम वन टाइम दे रहे हो ना, हर बार सेक्स करने के टाइम पे दिहाड़ी दे रहे हो क्या? तो यार तो कोई प्रोस्टिट्यूशन थोड़ी है जो हर बार उसे दूंगा। तो फिर दिहाड़ी का वर्ड क्यों यूज हुआ है? अल्लाह ने क्यों यूज किया है कि जब तुम सेक्स करो उसके साथ तो उसको दिहाड़ी दो, निकाह जब करो? तो इसलिए कहा भाई, मैंने आपको बता तो दिया, आपकी अनबन नहीं है, नहीं बनना है आपका, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप उसे रिलीज कर दो, छोड़ दो, ठीक है, तो उन वो पैसों से वो अपना गुजारा कर लेगी। यार मैंने इतने अच्छी तरीके से अरे आपको लेकिन समझा तुम रहा हूँ वन भाई। टाइम दिहाड़ी दे रहे ना, तुम तो 11,000 वन टाइम दिहाड़ी पे दे ही रहे हो उसको। वो वन हम्म, वन टाइम 11,000 में क्या वो अपना गुजारा कर लेगी? तो यार तो इसका मतलब तो फिर ये है कि मतलब जितनी भी जो मुसलमानों की जो बीवियां हैं तो फिर वो सब प्रोस्टिट्यूशन है तुम्हारे कहने के मुताबिक फिर? मेरे नहीं, कुरान के हिसाब से। आप नहीं, उसको कुरान के हिसाब सेक्सुअल से नहीं। रिलेशनशिप के लिए आप उसको पैसे दे रहे हो, दिहाड़ी का वर्ड यूज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि प्रोस्टिट्यूशन में ही आदमी पैसा देता है। जो दिल का रिश्ता होता है उसमें थोड़ी ना पैसे थोड़ी ना देता है इंसान, वो तो गिफ्ट देता है एक इंसान। अच्छा। अगर एक मेरी बात पहले खत्म होने दो अली भाई। जो जी। दिल का रिश्ता होता है उसमें एक इंसान जो है, पार्टनर्स एक दूसरे को गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं, गिफ्ट देते हैं। उसमें ये नहीं होता कि मैं आज तेरे साथ सेक्स करने वाला हूं तो मैं तुझे इतनी दिहाड़ी दूंगा। वो प्रोस्टिट्यूशन में होता है वो। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, कुरान जो है उसके हिसाब से ये एक प्रोस्टिट्यूशन है, लीगल प्रोस्टिट्यूशन। भाई कुरान के हिसाब से थोड़ी है, ये आपकी थिंकिंग के हिसाब से हो गया ना, मेरी कहा कुरान आपकी सोच वर्ड की। यूज कर रहा है ना दिहाड़ी का। यार भाई दहाड़ी का वो तो ये कुरान तो ये कह रहा है भाई, अपनी बीवियों को अजसड़ू करो, उन्हें मेहर दो, जितनी तुम्हारी औकात हो उस मेहर हिसाब मेहर से। बता दो। मेरे को मेहर बता दो, आयत में मेहर का वर्ड यूज बता दो। यार हमारे उलमा इकरामों ने मेहर का कॉन्सेप्ट बताया। तुम्हारा अल्लाह उजरत। नहीं बता पाया, तुम्हारे उलमा बताए। तुम्हारा अल्लाह दिहाड़ी वर्ड यूज करता है और तुम्हारे उलमा जो है उसको मेहर चेंज कर देते हैं क्योंकि शर्म आ यार रही थी दहाड़ी, उनको। देखे देखे मेरी बात सुने, दहाड़ी का जो अल्फाज है वो हिंदी में है, और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उर्दू में ये मेहर है, हाँ, बस ये फर्क है। कहाँ है मेहर? उजरत है, उजरत, मेहर नहीं है। उजरत है, उजरत, मेहर है ही नहीं मेरे भाई। जरा अली भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि ये अंधविश्वासी जिंदगी छोड़ो और थोड़ा सा गौर फिक्र करो, तहकीक करो कि जिस मजहब में जिस शख्स के ऊपर इतने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो वैलिड है भी क्या नहीं है। जब आपकी तहकीक मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद अगर आप उनको अच्छा पाते हैं तो कोई बात नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन एक अंधविश्वास के भाई मेरे को सुनना ही नहीं है, मेरे को देखना ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट एक अजम्पशन करके रख लिया, नहीं ये बंदे ने किया है तो वो सच्चाई है, अच्छा ही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, थोड़ा आपको पता तहकीक है भी आपके करो। वालिद साहब पहले क्या करते थे? क्या करते थे? नहीं, कुछ भी मैं वही करते पूछ थे रहा हूँ अगर आपसे, अच्छा। तहकीक आपके सुनो बाद। मेरी बात, मेरी बात सुनो, उसका जवाब ले लो। अगर जी, मेरे वालिद साहब मैं अच्छा, आपकी पर्सनल 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 डिटेल नहीं मांग रहा आपसे, मतलब एक आप वो मैं कुछ भी वही कह एग्जांपल रहा दे हूँ, सकते हैं। आपका सवाल पे हम्म। ही मैं जवाब दे रहा हूं कि मेरे वालिद साहब जी। जो भी करते थे, अगर वो अच्छा करते थे तो मैं शान से कहूंगा कि हाँ वो ये काम अच्छा करते थे। अगर वो कोई गलत हम्म। काम करते थे तो बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ मैं ये कहूंगा कि ये काम वो गलत करते थे। हम्म। मेरे अंदर इतनी अच्छा। ऑनेस्टी है और तुम लोग भी ठीक। इतनी ऑनेस्टी पैदा करो जबरदस्त। अपने अंदर कि आपके रसूलुल्लाह ने जो गलत काम किया है उसको हिम्मत करके नौसू कहो कि हाँ रसूलुल्लाह ने ये गलत काम ही किए हैं। कोई गलत काम नहीं किए यार, वो बस आपको मतलब अपनी स्ट्रीम चलानी है, ठीक है, कोई तो गलत काम नहीं किया आपको भी रसूलुल्लाह ने। कोई गलत काम नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताओ कि अभी ये लास्ट डिस्कशन है आपके साथ, फिर हम या तो स्ट्रीम खत्म करेंगे या वो एडम साहब जो आए थे अगर वो फिर से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। आपके रसूलुल्लाह ने दूसरे कौमों की औरतों को लौंडी बनाया, स्लेव बनाया, उनके साथ सेक्स किया,
हुक्म दिया, अलाउ किया और उनको बेचा भी मार्केटों में, क्या ये अच्छा काम था रसूलुल्लाह का? साबित करें आप, कहाँ बेचा, क्या अगर मैं साबित कर दूं तो? कहाँ बेचा कहाँ है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कौन से एरिया में बेचने बेच का दिया? अगर मैं साबित कर दूं तो फिर आप बोलोगे कि हाँ रसूलुल्लाह ने गलत काम किया? नहीं, मैं क्यों बोलूंगा? तो फिर क्यों बोल रहे हो साबित करो, जब अब तुम तो ये कह रहे साबित हो करो। मैं कि अगर एक मिनट अली भाई, अगर तुम ये कह रहे हो कि बेचना गलत है तो मैं चलो भाई मैं आपको बताऊंगा कि बेचा है नहीं यार बेचा। उसे बेचना अगर नहीं तुम कहते, ये कह रहे अल्फाजों हो का कि फर्क होता बेचना है, गलत, ठीक है? आपने अली उस भाई, अल्फाज को थोड़ा यू टर्न ले लिया अली और भाई, मैं एकदम सीधा सीधा जा रहा हूँ। अच्छा बेचने को आप सारा खेल सही तो समझते, कॉन्सेप्ट मीनिंग्स अली का भाई, ही है अली भाई, भाई, समझने इस का है। तरीके से चलते अली भाई, इस तरीके से चलते हैं। मुझे ये बताओ कि आप मुझे सुन पा रहे इंसानों हैं? को, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी बात आपको आ रही है? नहीं, आपकी बात ड्रॉप हो गई थी। अभी आ रही है? हाँ, अब नहीं, आ रही बिल्कुल है। बराबर है आपका साउंड। ठीक है। अली भाई ये बताओ कि किसी को स्लेव बना के उनके साथ सेक्स करना और उनको बेचना भी, यानी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको बेच भी सकते हो, इसको आप एक अच्छा काम समझते हो या बुरा काम समझते हो? पहले ये बताओ। देखिए, ये डिपेंड करता है सामने वाला कौन है, हाँ मतलब सामने वाला कौन होना चाहिए जहां पे समझ आया? किसी की, हाँ मैं वही पूछ रहा हूं कि क्या ऐसी कंडीशन है जिसमें आप एक औरत को बांदी बना के उसके साथ सेक्स कर सकते हो और उसको बेच सकते हो और ये एक नॉर्मल काम होगा, जायज है, अच्छा काम होगा? हाँ, जायज है, क्या कंडीशन है? जायज है। बांदी का कॉन्सेप्ट ऐसा था, अब जंग है, नहीं नहीं, कंडीशन में बता देता हूँ। बांदी का कॉन्सेप्ट है, जायज है, आप कर सकते हैं, ठीक है? आपके अंदर कुव्वत नहीं है तो फिर आप दूसरे को शेयर कर दें, मतलब दूसरे को दे दें, कहने का मतलब ये है। हाँ और रही तो बात इसको बांदी का आप जो एक अच्छा, कॉन्सेप्ट था, उसमें जंग है। एक मिनट अली हम्म, भाई थोड़ा रुको। तो जी जी, आप ब्रेक लग गई जनाब। इसको एक अच्छा हम्म, यार, इनके इंटरनेट में शायद प्रॉब्लम है या पता नहीं। अली भाई, क्या आप इसको एक अच्छा अमल समझते हैं कि आप दूसरे की औरतों को पकड़ के उसको स्लेव बनाएं, उसके साथ सेक्स करें और उसको बेचे? देखें, आपने यहाँ अल्फाजों का फर्क कर दिया, ठीक है? क्या फर्क कर पकड़े, दिया? आप कह रहे हैं पकड़े, पकड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं था वो। असल में क्या हुआ, जंग हुआ करती थी, अब उसमें आदमी मर जाते थे, औरतें रह जाती थी। अब भाई हम्म, उनका खर्चा पानी, हुक्का पानी कैसे चलेगा? नहीं तो नहीं, इसलिए फिर उन्हें हुक्म दे तो दिया जाता, चलो भाई तुम रख लो, उनके खर्चे चलाओ, इनकी जो पाकिस्तान की परेशानी। फौज आज इंडिया पे हमला करे, सारे सबको मारे और आपके घरों से आपकी औरतें उठा के ले जाए, बिल्कुल सही होगा, ये सही है ना? भाई जब मैं मर गया तो फिर मेरा मरता और जागता बराबर ही है ना। ये मैं ये मर गया तो सवाल फिर मैं क्या सवाल कर ये है सकता कि तो हूँ? आप जिंदा या आपके मर गए, सवाल ये है कि आपके सही होगा ना औरतों के आपकी नजर साथ में? यार सवाल, ए, यार ए, एक बात बताओ, एक बात बताओ, तो आप मर गए, आपके मरने के बाद आपकी औलाद क्या कर रही है? कुछ भी कर रही है, तो आप पे क्या फर्क है? अच्छा आप तो मरे हुए मतलब हो ना। एक मिनट अली भाई, मतलब नहीं, आप ये आप तो कह मरे रहे हुए हो, हैं ना। एक मिनट, मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके मरने के बाद अगर कोई आपकी बच्ची का, आई एम सॉरी यार मैं क्या करूं, मेरे को एग्जाम्पल नहीं देना रहता है लेकिन ऐसे लोगों को समझाने के लिए मुझे देना पड़ता है। आप ये कह रहे हो कि आप मर जाओगे, चलो मैं रेप तक नहीं हम्म, जाऊंगा, हालांकि ये भी एक हम्म। रेप ही है लेकिन मैं रेप वर्ड यूज नहीं करूंगा। मुझे नहीं ये यार, वो बताओ रेप कि है ही नहीं। आप एक मिनट अली जी भाई, जी, रुक जाओ रेप कैसे रुक कहते हैं? रेप उसे जाओ कहते एक हैं मिनट जिसमें एक लड़की की मिनट रजामंदी ना हो, उसके साथ आप एक जबरदस्ती कर मिनट रहे हो, और एक जब वो लड़की मिनट खुद राजी। एक ब्रेक लग मिनट गई थी, एक लग गई मिनट ब्रेक, मैं बोले। रजामंदी पे भी आऊंगा, एक मिनट मैं रजामंदी पे भी आऊंगा, टेंशन ना ले। मुझे ये बताइए कि आपको, जैसे कि अली भाई ने एक एग्जांपल दिया, इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाए और पाकिस्तान या पाकिस्तान की आर्मी, चलो आप पाकिस्तान में, चूंकि आप एक मुसलमान है, समझो दो, चलो इंडिया पाकिस्तान का छोड़ दो, दो कंट्री है, एक कंट्री में आप है, दूसरे कंट्री में जो दूसरे हमारे लोग हैं वो आपकी कंट्री पे हमला करते हैं, आपको मार देते हैं, आपकी बहन, बेटी और माँ, हम्म, क्योंकि आपको हम्म, मार दिया है, अब कोई संभालने वाला हम्म, नहीं है, तो आपकी हम्म, बहन वो एक आर्मी के पास, वो अपने पास रख लेता है, आपकी बेटी हम्म, वो एक आर्मी रख हम्म, लेता है, और आपकी हम्म, बीवी वो एक आर्मी रख हम्म, लेता है, और चौथा वाला आपकी हम्म, माँ को रख लेता है। अब वो उनके जी साथ अच्छा खिला पिला के उनके साथ सेक्स भी कर रहे हैं। जी। फिर उसके तो बाद इसमें वो बुराई है? आदमी, अच्छा इसमें कोई बुराई नहीं है?
इसमें मैं तो मर गया ना, मैं कोई कब्र से उठ के थोड़ी आएगा बदला नहीं लेने नहीं के तलवार उठाता हुआ, आपके क्या आपके चीर दूंगा मरने फाड़ दूंगा, एक चीर दूंगा क्या फाड़ क्या दूंगा। क्या भाई मैं कब्र में से उठ के थोड़ी आऊंगा, कहूंगा मैं चीर दूंगा फाड़ दूंगा, मैं चीर दूंगा फाड़ अच्छा दूंगा, एक जिसने मिनट मेरी एक मतलब मिनट इसे अच्छा 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 रुक जाओ आपके लिए हम्म, आप मर चुके हैं आपको पता ही नहीं है लेकिन जो आपकी बीवी बेटी बहन और माँ के साथ हो रहा है वो अच्छा है या बुरा है देखें जबरदस्ती तो कोई मर्द कितना भी बड़ा माइका ला लो, जबरदस्ती तो किसी के साथ लड़की के साथ कर नहीं सकता एक सिंगल आदमी। मेरी बात ठीक है, आप नहीं सुने मेरा ठीक जवाब है, नहीं दिया आपने मैंने मैं आपसे आपकी ये बात की पूछा जवाब दे रहा हूँ। नहीं आप वो नहीं जवाब दे रहे मुझे ये बताइए कि कोई जो 4 लोग आपकी 4 घर की औरतों को बांट के रखे वो आपके घर की बेटी को अच्छे से खिला पिलाकर उसके साथ सेक्स कर रहे हैं और उसके जी। बाद कुछ दिनों के बाद उसको जाके मार्केट में बेच रहे हैं ठीक है हम्म। ये बताओ कि हम्म। आपकी बहन बेटी माँ के साथ ये जो हो रहा है ये अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है देखें मेरा मानना ये, मैं अच्छे बुरे का तो या मैं आपको उसका कोई मतलब वो बता ही नहीं सकता, लेकिन मैं जो पीछे की नहीं बता सोच रहा हूँ सकते वो ये सोच, न मैं एक सेकंड रुके तो सब्र तो करें, सब्र हाँ करें, थोड़ा रुकें जरा। हाँ हाँ भाई उसके पास इतना नहीं होगा खिलाने पिलाने के लायक, तो इसलिए वो दूसरे को दे देगा, भाई तू रख इसका ख्याल, तो उसमें तो बुराई क्या है? तो ये मतलब आप याद आपकी रखना, ये एक आप मिनट एक अपनी मिनट माँ अली बहन भाई के बारे में बात कर रहे हो, ये एक नहीं होगा दूसरे को दे देगा, उसके पास नहीं होगा एक तीसरे, मिनट आप अपनी। अली भाई थोड़ा रुक जाओ यार प्लीज अली शाह भाई थोड़ा रुक जाओ अली भाई आप ये कह रहे हैं कि एक बंदा जो आपकी माँ बहन बेटी को पकड़ा है वो उसके साथ सेक्स कर रहा है और उसके पास अभी आपकी बहन को पालने के लिए पैसे नहीं बचे हैं तो वो मार्केट में जाके उसको बेच दे रहा है ताकि कोई पैसा हो जिसके पास संभाल सके वो उसको खरीद के अपने पास रखे आप इसको अपनी माँ बहन बेटी के लिए सही समझते हैं राइट राइट। लख दी लानत तेरे मुंह पे वाकई यार, वाकई अफसोस दर अफसोस दर अफसोस। और कोई सवाल? अभी यही बात जाके अपनी माँ बहन बेटी के सामने कहना कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो ये तुम्हारे साथ सही होगा यार जो नसीब में लिखा और होगा ना वो होगा, तुम्हारे और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। बेगैरत लक मानते इंसान हो या नहीं? अभी अल्लाह पे डाल दिया तो तुम्हारे अल्लाह से बड़ा क्या बोलूं अभी मैं यार लख दी लानत